afternoon, all of you. Come, Sambhav. So, this is Sambhav Patni. इन्होंने इस बार इकोनॉमिक सर्विसेज क्वालिफाई किया है, and yeah, and we are very proud of him. So, this is for you, Sambhav. And there is something that I share with my students once they qualify things. ये मेरी personal library की books होती हैं. So I have this for you, Sambhav. This is. Thank you so much. Thank you. God bless you. So I know better, please. So one thing is that Sambhav's journey has not been that long. It has been long, but not that long. Sambhav मेरे साथ L4 बैच था हमारा 2023 में. So he passed out, and this is 2 years later he has qualified. He was a classroom student offline. He would come. हमारी उस वक्त उस बिल्डिंग में क्लास होती थी, बेसमेंट में, I think. So तो अब मैं भी बच गया, ये भी बच गए. So that is there. But always a good student. He has been. और इसकी एक बात मैं बताता हूँ जो मुझे भी नहीं पता थी. मॉक इंटरव्यू जब इस बार में ले रहा था तो मुझे पता चला. He did arts with maths, economics of course with it. तो मैंने पूछा कि तुमने humanities क्यों लिया, क्योंकि 10th में इनके तुम्हारे कितने 97-98% कुछ थे. तो मैंने कहा 10 CGPA. तो मैंने कहा 10 CGPA के बाद तुमने humanities क्यों ली. He was very clear. He said सर मैं सिविल्स करना चाहता था, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता था. तो मुझे लगा कि अगर मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ये सब पढ़ूं तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा. सो दैट क्लैरिटी एक्चुअली इम्प्रेस्ड मी एट दैट टाइम ऑल्सो. मुझे लगा कि ये क्लैरिटी अगर किसी में है, दैट व्हाट डू आई वांट टू डू 5 years later, 7 years later, that helps definitely. So I will ask Sambhav to share some part of his journey, and then on your part I will keep moderating the questions, and Sambhav can answer. So Sambhav, ये तुम बताओ. So my name is Sambhav Patni. I secured All India Rank 9 in Indian Economic Service Examination 2025. Also, I wrote Civil Services Mains Examination this year. And I completed my undergraduation in Economics from St. Stephen's College, University of Delhi. After that, I pursued Masters in Economics from Delhi School of Economics. I've also qualified UGC NET JRF in Economics. And so, basically, this was my first attempt at Indian Economic Service Examination and second attempt at Civil Services and first mains. So I completed my optional course with Sir in 2023. After that, I did my GS Foundation course from Next IAS itself. And after that, I also did AIM program with Next IAS and mains test series, current affairs program, everything with tests with Next IAS. So you can say that I am a Next IAS commodity. Next IAS built me. Yes. So I have a very good memories with Next IAS and especially with Vibhas sir. And I would like to say that Vibhas sir is like a complete mentor. He is not just a teacher, right? जो कि आपको सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे. He is preparing you for the entire life. Because exam निकले ना निकले, it is important that we become good person so that we can do justice with our lives, and wherever we go we can contribute to the society. So I think Vibhas sir वो role बहुत अच्छे से play कर रहे हैं. And now I think you all can ask your questions, जो भी आपको पूछना है regarding preparation, regarding economic services, civil services. Also I would like to say that RBI DEPR में भी I reached till interview stage, but interview में काफ़ी कम marks मिले तो हुआ नहीं. बट हाँ, आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं कुछ भी. हाँ, तो सोर्सेज का, सो आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर दैट माय सोर्सेज वर लिमिटेड टू विभास सर्स नोट्स. उसके बियॉन्ड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आप वही कर लो. आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट टू आंसर क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन. हाँ, कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपको लगेगा कि आप उतना अच्छा आंसर नहीं कर पाओगे, बट बिलीव दिस कि ये जो एग्जाम है यहाँ पे हमें 40 to 50% स्कोर करना है, और वो आप कर लोगे तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे. यू डोंट हैव टू स्कोर 90%. सो कई बार लगेगा कि सर ने कुछ चीज़ छोड़ दी या मिस कर दी. सो बिलीव सर, राइट, कि वो जो चीज़ छोड़ रहे हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एग्जाम है यहाँ पे मेन चैलेंज क्या है, कोर्स लेंथ, राइट, कोर्स साइज. की कोर्स इतना बड़ा है. अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का भी कोर्स देखो तो आपके कंप्लीट मैक्रो, माइक्रो, मनी एंड बैंकिंग, ग्रोथ डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, मतलब जो कि इवन बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स में भी पूरी तरह से कवर नहीं होते,
उसके बियॉन्ड भी चीजें आती है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कहीं ना कहीं हमारे जो सोर्सेज है हमें उसे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर वो हम नहीं करेंगे तो आई थिंक फिर तो चाहे आप कितने ही अटेम्प्ट दे दो इस एग्जाम में, कभी नहीं निकलेगा। तो इसलिए हैव फेथ इन सर्स नोट्स, उसके बियॉन्ड कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी लग रहा है कि चलो अब कुछ करना ही है तो इकोनॉमिक सर्वे कर लो, बजट कर लो, वो भी अगर आप सर की वीडियोस देखोगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको खुद रीड करने की जरूरत है। मैंने नहीं रीड किया इकोनॉमिक सर्वे, मैंने सिर्फ सर के जो नोट्स थे उसी को रेफर किया। और इंडियन इकोनॉमी में आई थिंक मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में। इट वाज हाँ आउट ऑफ 200। तो आई थिंक जो भी उनके नोट्स है वो सफिशिएंट है, क्योंकि मुझे पता है कि इंटरनेट पे कोरा में ये सब लोग लिखेंगे कि सर के नोट्स इंडियन इकोनॉमी में स्पेशली सफिशिएंट नहीं होते, आपको इकोनॉमिस्ट के नेम चाहिए, आपको डेटा पॉइंट्स चाहिए, एंड दैट इज इनसफिशिएंट फॉर दैट। बट ये चीज ध्यान रखना कि आंसर जो होता है दैट इज बिल्ड फ्रॉम योर आर्ग्यूमेंट्स, नॉट फ्रॉम योर डेटा और फ्रॉम योर एग्जाम्पल्स। दीज आर जस्ट फिलर्स। मेन जो आत्मा है एक आंसर की वो आपके आर्ग्यूमेंट है। अगर वो आर्ग्यूमेंट में कहीं आपके लैकिंग्स है तो फिर चाहे आप कितने ही अच्छे इकोनॉमिस्ट को कोट कर दो, चाहे आप कितने ही अच्छा डेटा पॉइंट लिख दो, योर आंसर विल नॉट फेच गुड मार्क्स। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम समझे कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्जामिनेशन। You understand what question is asking and you understand how to answer that. That's it. उसके बाद में अगर आपके पास अच्छे एग्जाम्पल्स है, डेटा है, इकोनॉमिस्ट नेम है, then that is like an icing on the cake. But मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपके आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करने, आपके कंसेप्ट्स को प्रिपेयर करने। सो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, क्यों जस्ट ऑन द बेसिस कि हाँ हमें डेटा पॉइंट्स रखने हैं, हमें इकोनॉमिस्ट के नाम याद रखने हैं। तो पहले सर के नोट्स, उसके बाद में फिर और कुछ। फॉर जीएस फाउंडेशन कोर्स मैंने नेक्स्ट आईएस से ही किया था। सो माई सोर्सेज वर लिमिटेड टू क्लास नोट्स ओनली एंड बेसिक सोर्सेज लाइक एनसीईआरटीज। even in the polity also I didn't do Lakshmikant. I was well content with sir's notes which was provided by Nitish sir in GS foundation course. And for mains, yes, GS 2 में थोड़ा सा आपको additional करना पड़ेगा, that will be depending on PYQs, क्योंकि उसमें governance और अलग अलग टॉपिक्स आते हैं जिसके लिए हमें एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर करना है। तो वो आप PYQs के थ्रू कर सकते हो, बट जो मेन है वो क्लास नोट से ही हो जाएगा। सो GS2 से हो जाएगा। GS1 एज फार एज हिस्ट्री एंड ऑल दैट इज कंसर्न, तो वहाँ पे भी NCERT इज सफिशिएंट एंड अभिषेक सर के जो नोट्स थे जो GS फाउंडेशन में होते हैं वो सफिशिएंट है। और उसके बाद में मेन ये है कि हमें ये समझना है कि आंसर राइटिंग का टेम्पलेट क्या होता है। कभी भी हम आंसर करते हैं तो जैसे अगर हमें पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो कोई भी आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आएगा, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें आर्ट एंड कल्चर के सारे डायमेंशंस उधर कवर करने हैं, कि कॉइन मेकिंग, डांसेस, स्कल्पचर्स, ये सारी चीज़ें तो ये हर डायनेस्टी में कॉमन होगी। तो आपको लगेगा कि सिर्फ मैंने विजयनगर का पढ़ा, मैंने सिर्फ चालुक्य का पढ़ा, पर मैंने पल्लवास का मिस कर दिया है, कहीं और मिस कर दिया। तो हमें ये समझना होगा कि जो चीज़ उस एरा में कॉमन थी वो उनके साथ भी कॉमन होगी। सो वी हैव टू टेक दैट मच रिस्क, और हमें वो लिखना है पॉइंट। हम जेनरिक पॉइंट लिख देंगे, एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं आएगा, बट स्टिल वी कैन राइट जेनरिक पॉइंट एंड वी कैन मेक दैट आंसर लुक गुड। क्योंकि एट द एंड व्हाट आई फील कि जितने ज़्यादा आप पेज भरोगे इस एग्जामिनेशन में उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, एंड विथ डाइवर्स पॉइंट्स। सो हमें मेन टेम्पलेट बनाने हैं कि कैसे टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे गवर्नेंस में वी कैन फॉलो स्टेक होल्डर अप्रोच, विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल, इनके बेसिस पे हम करेंगे तो फिर हम कंटेंट कम भी होगा हमारा तो भी हम ज़्यादा क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। सो आई थिंक हमें ये कॉमनैलिटीज ढूंढनी पड़ेगी हर जगह पे। फिर आपके कम नोट्स हो चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई भी कोचिंग के नोट्स होंगे, आई थिंक दे आर वेल सफिशिएंट। You don't need to do anything extra beyond your standard sources. Standard sources तो important है ही। और प्रीलिम्स में तो आई वुड से जितना कम सोर्सेज रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि मैंने 2 प्रीलिम्स के एक्सपीरियंस है। फर्स्ट एक्सपीरियंस में फर्स्ट अटेम्प्ट में आई रेड मोर, सेकेंड में मैं कम पढ़ा पर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, मेन बेसिक सोर्सेज पढ़े और PYQs को प्रैक्टिस किया। जितना ज़्यादा PYQs को प्रैक्टिस किया, उसके पैटर्न्स को समझा कि जो क्वेश्चन की मेरे पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है उसको कैसे आंसर किया जा सकता है, हाउ टू आंसर दैट, वो एक आर्ट है। अगर वो आप सीख लोगे, एंड दैट विल बी ओनली लर्न बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर PYQ क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, एंड नॉट द टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस, क्योंकि टेस्ट सीरीज में वो पैटर्न फॉलो नहीं होगा। सो
stick to PYQs. जो भी टॉपर्स बोलते हैं that is very correct. PYQs are the best source for anything. So I think these are the sources. अगर आपको कोई और specific किसी subject के बारे में पूछना है तो I can tell my sources for that too. हाँ हाँ. एक सवाल ऑनलाइन के लिए वो थोड़ा रुक के One question is that when I corrected your papers, the test series के papers, Yes sir. so they were much better this year than last year. Last year बहुत अच्छे थे. But इस साल वाले papers were relatively better. तो writing practice के लिए चाहता हूँ कि तुम बताओ बच्चों को. हाँ हाँ. writing. Yes sir. So sir, firstly writing आंसर राइटिंग का मेरे को ये लगता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बिना तो आंसर अच्छा नहीं हो सकता है. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इकोनॉमिक्स में स्पेशली जब हम पेपर 1 की बात करते हैं या इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट हमारे बहुत अच्छे करने हैं कि वो मैं किसी भी और इंसान को एक्सप्लेन कर सकूं, कोई लेमैन इंसान को भी एक्सप्लेन कर सकूं. इफ आई एम एबल टू डू दैट देन आई कैन राइट दैट आंसर वेल ऑल्सो इन द मेन एग्जामिनेशन. क्योंकि मैं आपको मेरा पर्सनल बताता हूँ, आई हैव नॉट प्रैक्टिस मेनी क्वेश्चंस बाय हैंड. आई यूज टू ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चंस कि ब्रेनस्टॉर्म करके भी मेरा काम चल गया क्योंकि आई वॉज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इन माई 11th-12th ऑल्सो, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से ही हूँ. उसके बाद में कॉलेज भी मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड से था, तो मैंने इतने आंसर्स प्रैक्टिस नहीं करे. तो इसलिए मैं यहाँ पे आके ये नहीं बोलूँगा कि मैं हर दिन 5 क्वेश्चन लिखता था, 10 क्वेश्चन लिखता था, बिकॉज दैट विल बी लाइक लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. एंड आई थिंक कि क्योंकि मैं नेक्स्ट IAS से ही पढ़ा हूँ, सो आई वुड लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू. तो मैंने काफ़ी कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, बट मेरा मेन आइडिया यही होता था कि मैं खुद को कैसे असेस कर सकूँ उसमें कि क्या मैंने डिमांड जो है क्वेश्चन की वो मीट करी, पहली चीज़. दूसरी, स्ट्रक्चर मैंने सही बनाया है या नहीं बनाया, कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो कि 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया. अगर क्वेश्चन ही एक्सप्लिसिटली 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है तो देन इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम दोनों पार्ट को इक्वल स्पेस दें, कि फर्स्ट पार्ट को हम 1 पेज दे, सेकंड पार्ट को हम दूसरा पेज दे. ऐसा नहीं कि फर्स्ट पार्ट को हमने 1.5 पेज दे दिया और फिर सेकंड पार्ट को हमने स्पेस ही नहीं दिया है. तो दैट वाज समथिंग विच आई प्रैक्टिस. एंड अबाउट इंट्रोडक्शन, सो इंट्रोडक्शन वही सिंपल की डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन या फिर कोई कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन की कोई करंट में कुछ हुआ हो या फिर कोई डेटा बेस्ड अगर मुझे आ रहा है उस टाइम पे, सिंपल वही चीज़. पेपर 1 में आई यूज टू डू कि जैसे अगर रिप्सिंस्कीज थ्योरम उन्होंने पूछा है, सो आई यूज टू मेंशन इन द वेरी बिगनिंग इटसेल्फ दैट इट इज रिलेटेड टू ट्रेड थ्योरी ऑफ हेक्सर-रोलन मॉडल, एंड देन आई यूज टू प्रोसीड. और फिर वही थ्योरेटिकल मॉडल्स में तो इट इज़ लाइक वेरी कॉमन कि आप सबसे पहले अजम्पशंस लिखोगे, बिकॉज इन इकोनॉमिक अजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी सारे मॉडल्स होते हैं वो अजम्पशंस पे ही बेस्ड होते हैं. फिर आप अजम्पशंस लिखोगे, उसके बाद में राइट अ क्लियर स्टेटमेंट जो कि क्वेश्चन में पूछा है, कि जो आपको मॉडल के बारे में पता है कि अगर हेक्सर-रोलन के मॉडल के बारे में पूछा है, सो राइट क्लियरली कि हाँ कौन सी कंट्री क्या एक्सपोर्ट करेगी, वही मेन स्टेटमेंट है. वो जैसे आप मेंशन कर दोगे तो एग्जामिनर विल नो दैट यस यू नो द थ्योरी एंड एग्जामिनर विल गिव यू मार्क्स. देन यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम थोड़ा नीट होना चाहिए बट मेरे साथ थोड़ा मैं नीट नहीं बना पाता था, बट आई थिंक उस पर मुझे और वर्क करना चाहिए. तो वो आप और कर सकते हो कि डायग्राम को नीट करो. उसके बाद में एक्सप्लेनेशन, अगर आपके पास आंसर में ही ऑलरेडी ज़्यादा पार्ट है कि आप उसको और कुछ चीज़ आंसर डिमांड कर रहा है, तो फिर आपको डायग्राम एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है. आप उसको शॉर्ट फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जस्ट एरो फॉर्म्स में जो सर ने सिखाया भी होगा, तो ताकि आपका जल्दी भी हो जाए पेपर. उसके बाद में फिर जब आपने पूरा आंसर, जब क्वेश्चन को आंसर कर दिया, देन लास्ट में कंक्लूजन के पार्ट में आपको क्या करना है कि आप कुछ अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहीं बन रहा है जो कि आपने देखा हो वर्ल्ड में, या फिर पॉलिसी मेकिंग पे किसी का क्या इम्पैक्ट होगा, कि जैसे अगर हमने टैक्सेशन के बारे में कोई क्वेश्चन आया, चाहे इंडियन इकोनॉमी में आया या पेपर 1 में आया, तो हमें ये पता है कि टैक्स बर्डन कैसे डिसाइड होगा फ्रॉम द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सो यू कैन ऐड दिस पॉइंट विच विल बी एक्स्ट्रा, विच विल बी यूनिक, कि इससे ये भी समझ आएगा कि हाँ जो कैंडिडेट है उसको इसका पॉलिसी एप्लीकेशन भी पता है कि वो क्यों पूछ रहे हैं. आपने लास्ट में डाल दिया दैट दिस विल डिसाइड लाइक हाउ मच बर्डन विल बी बोर्न बाय प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, सो गवर्नमेंट नीड्स टू नो दिस ऑल्सो, एंड देन यू जस्ट एंड द क्वेश्चन. आई थिंक मेरा ये इसमें पर्सनल ओपिनियन है दैट कीप थिंग्स वेरी सिंपल. ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट मत करो. जस्ट थिंक कि आप यूनिवर्सिटी के ही एक पेपर लिख रहे हो, उसमें कैसे आंसर करते थे, जस्ट डू दैट. डोंट मेक इट लाइक अ रॉकेट साइंस की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुछ यूनिक आंसर लिख रहे. जस्ट हर क्वेश्चन को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लो कि हाँ मुझे इसको जो जिस भी तरीके से मैं इसको बेस्ट एड्रेस कर सकता हूँ
लेट मी डू दैट. यू डू नॉट नीड टू कॉपी एनीवन. मेरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं है या किसी और टॉपर को कॉपी नहीं करना है. यू योरसेल्फ आर टॉपर. जब आप टॉपर बन जाओगे तो आपके अपने आप आंसर्स टॉपर के जैसे लगने लगेंगे सबको. अभी आप अगर मेरे आंसर्स देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ बात थी. जब मैं करता था तो मुझे नहीं लगता था. दैट इज वेरी ऑनेस्ट. दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी. वो नॉर्मल होती है. तो इसलिए जस्ट प्रोसेस में रहो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, टाइम पे पढ़ रहा हूँ, टाइम पे रिवाइज कर रहा हूँ. जितने भी क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि मेरे लिए रिक्वायर्ड है, कि जैसे कई लोगों को थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट होती है, किसी किसी को कम होती है. एंड दैट आई थिंक एन इंडिविजुअल इज द बेस्ट जज फॉर दैट. नो वन एल्स कैन टेल यू दैट. नाइदर मी. सर फिर भी बता सकते हैं क्योंकि सर इज एन एक्सपर्ट इन दिस. बट वही है कि आपको खुद को समझना पड़ेगा कि मेरे को कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करो और एक कंसिस्टेंसी रखो, एक प्रोसेस में रहो. अगर कभी फेलियर भी आ रहा है तो डोंट टेक इट एज द एंड पॉइंट ऑफ योर लाइफ. बिकॉज कई बार होता है कि वो फेलियर आपको बहुत ज्यादा चीजें सिखा जाता है और उसके बाद में हमें लगता है कि हाँ इसमें और अच्छी चीज छुपी हुई थी. तो आई थिंक दैट इज समथिंग. इज कभी संभव तो मुझे पीछे मुझे ऐसी बात कर रहे थे, बोला नहीं सर अच्छा हुआ मेरा आरबीआई इंटरव्यू नहीं हुआ, तो आई कुड राइट दिस एग्जाम विद मोर फायर देन आई वुड हैव अदरवाइज. समटाइम्स व्हेन वी डोंट सक्सीड दे आर हार्बिंगर ऑफ गुड थिंग्स टू कम. कीप दैट इन माइंड. संभव एक सवाल ऑनलाइन है अदिति का, नाम बोल रहा हूं कॉन्शियस में. यस. उन्हीं का जवाब दिया था. इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट के जो मेरे वीडियोस होते हैं उसमें देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन in it. So how to take it down? Well, I generally suggest that take it down topic wise. Agriculture, the most agriculture and so on. But whatever you need. सो आई थिंक आई एग्री विद यू सर. सो अदिति आपको वही करना है कि आप टॉपिक वाइज ही अपने जो नोट्स है उसको अपडेशन कर दीजिए. क्योंकि जैसे सर नोट्स प्रोवाइड कराते हैं तो आई थिंक ईयर एक साल पहले का डेटा होता है. जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो आपको एकदम लेटेस्ट डेटा देगा, तो आप उसको ऐड कर लीजिए. और जो चीज़ आपको लग रही है कि हाँ आप उसको एग्जाम में लिख सकते हो, add that in your notes, because there is no point कि आप इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स को भी 100 पेज का बना लोगे, क्योंकि वो आप कभी रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे पेपर में. तो इंपॉर्टेंट ये कि वो कब पता चलेगा, जब आप पीवाईक्यूज को समझोगे, पीवाईक्यूज को पढ़ोगे कि हाँ क्या चीज मैं मेंशन कर सकता हूँ. सो उसी हिसाब से आप अपने डेटा पॉइंट्स को डालो और ये देख के डालो कि हाँ कि मैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में आई कैन यूज दैट, बिकॉज दैट इज ओनली व्हाट यू कैन एक्चुअली राइट इन द मेन पेपर. क्योंकि हमें ये समझना है कि मेन पेपर में हमारा जो सबसे बड़ा कांस्टेंट है दैट इज टाइम. उससे बड़ा कोई कांस्टेंट ही नहीं है. अगर आप पेपर को टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हो हर क्वेश्चन को और आपने उसकी डिमांड हिट करी है, देन आई कैन बेट कि कोई भी आपका इंटरव्यू कॉल तो नहीं रोक सकता है. फाइनल लिस्ट में आना ना आना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट डेफिनेटली यू विल गेट एन इंटरव्यू कॉल. फॉर सिविल सर्विसेज आई कैन नॉट से बिकॉज ये मेरा फर्स्ट मेंस था, बट अगर उसमें आता तो देन आई कैन सर्टेनली से दिस कि वो तो आएगा. इकोनॉमिक सर्विस में आया सो इकोनॉमिक सर्विसेज का आई कैन से. और मेंस में भी जितना मैंने सुना है और टॉपर्स को और मेरे फ्रेंड्स को जिसने क्लियर किया है, इंटरव्यू भी दिया है, तो उन सब ने यही बताया कि आपको क्वेश्चंस को टाइमली कंप्लीट करना है. और वो तभी होगा जब आप वेरी श्योर होगे कि आपको क्या लिखना है, और वो तभी होगा जब आपके नोट्स में आप वही चीज ऐड करोगे जो कि आपको पता है मेरे को फाइनल वाले पेपर में लिखना है. और जो आप रिवाइज कर पाओगे उसके एक दिन पहले, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं जैसे मेंस में, तो दैट रियली वर्क्स. क्योंकि अभी जब मैंने दिया था तो मैंने GS2 और GS3 इन सब के अलग से शॉर्ट नोट्स बना रखे थे. तो जब भी कोई क्वेश्चन आता था तो फर्स्ट चीज वही आती थी डेटा दिमाग में, और वही लिखता था क्योंकि वहां पे टाइम कंस्टेंट है. तो उसी हिसाब से अपडेट करो फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक वाइज. सो दैट शुड बी डन व्हेन यू हैव डन one round of revision of your entire syllabus. Yes. So for mains, जैसे civil services के mains में, I think even when you are doing it during the mains preparation time after prelims, that is also sufficient. You don't need to do it before prelims. But अगर उसके पहले if you are able to do it, then that is very good. Otherwise prelims के बाद में आप कर सकते हो जब आप revise कर रहे हो. Yes. Yes. So, in that particular time period, we are under tremendous pressure. Okay, we have to write this. And so, as a result, we get generic points. Yeah. For example, the governance commission, I have mentioned recording हुआ, इससे होगा, इससे accountability तो उसमें आप अपना X factor कैसे निकालोगे? जैसे कोई आपको क्वेश्चन मिला कि सोलर मॉडल को आपको लिखना है, बाकी 10 लोग भी किसी भी क्वेश्चन लिखते हैं, उन्होंने भी 600 पढ़ा होगा, तो आप अपना X factor कैसे निकालोगे?
जैसे एक्स फैक्टर का मैंने एक चीज़ बताई कि आप अपने कंक्लूजन में वो एक्स फैक्टर डाल सकते हो, ठीक है, बट मेरा ये क्वेश्चन है कि एक्स फैक्टर डालना क्यों है? आप देखो ना कितने मार्क्स आ रहे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के, कभी किसी के 50% क्रॉस किया है? नहीं किया है। 40%, 45 to 50% में सबके आते हैं। हमें ये समझना है कि हम कई बार क्या होता है ना, एक्स फैक्टर के चक्कर में हम जो मेन चीज़ है उसको छोड़ देते हैं। ऐसा ही सिविल सर्विसेज में आप किसी से भी पूछना जिसका पेपर निकला है, वो सब आपको यही बताएंगे कि आपको 12 से 13 क्वेश्चन है वो अच्छे करने हैं जो कि आपको आते हैं, जो 3 क्वेश्चन नहीं आते वो किसी को भी नहीं आते। सो यू डोंट हैव टू वरी दैट मच अबाउट दोज क्वेश्चंस, यू जस्ट हैव टू राइट जेनरिक पॉइंट्स ताकि आपको उसके कुछ मार्क्स तो मिल जाए। तभी तो आप देखो, अभी आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स लिखो, अपने कॉलेज के एग्जाम्स लिखो, people are scoring very high in those examinations, 90%, 80%, but when it comes to civil services, why is that कि वो लोग वहीं पे आके वो लोग जैसे GS में if someone is scoring 120, that is a very good score. Why is that? That is because this examination is like that. You cannot know 20 questions. You can only know 15 to 16 questions, जिसमें से भी आप 12 क्वेश्चन अच्छे लिख पाओगे क्योंकि टाइम का प्रेशर आएगा। वो जो 4 क्वेश्चन है बस आपको ये करना है कि आप उसको कैसे डाइवर्स बना पाओ, कैसे आप उसमें अपने जो भी आपने टेम्पलेट्स बनाए, जैसे मैंने बताया स्टेक होल्डर अप्रोच, उसके बाद में अलग अलग डायमेंशंस के अप्रोच, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, सो जस्ट मेक इट डाइवर्स। जेनरिक पॉइंट्स आ रहे कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको 10 में से 5-6 नहीं मिलेंगे पर 3 या 4 तो मिल जाएंगे, वो मिल जाएगा तो आई थिंक दैट विल वर्क। सो वही चीज़ है, ज़्यादा एक्स फैक्टर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। मेन ये है कि हमें हर आंसर जिस तरीके से हम बेस्ट एड्रेस कर सकते हैं, वी शुड डू दैट। इट शुड बी लाइक, जैसे क्रिकेट का मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, तो उसमें यही बोला जाता है कि आपको बॉल को उसकी मेरिट पे खेलना है, बस ये नहीं देखना कि अच्छा, क्योंकि रोहित शर्मा भी जब पहले, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रोहित शर्मा, सो रोहित शर्मा बिफोर 2013 ही यूज्ड टू से कि क्यों वो फेल हो रहे थे, क्योंकि उनके पास एक बॉल को खेलने के लिए 3 से 4 शॉट होते थे, उनको समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। बट देन ही रियलाइज कि उनको अपने गेम में थोड़ा सा कामनेस लानी पड़ेगी, उनको अपने गेम को बेटर समझना पड़ेगा और बॉल को उसकी मेरिट पे ही खेलना है, ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, कीप इट सिंपल। लुक एट विराट कोहली, उन्होंने इतने रन्स बनाए हैं जस्ट बाय स्कोरिंग सिंगल, डबल्स, सिंपल शॉट्स, कभी कोई पल्लू शॉट नहीं, कोई जो आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट लैब शॉट्स, कुछ ही स्कोर नहीं किया, फिर भी ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर। सो कई बार क्या होता है, सिंप्लिसिटी इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, सो कीप थिंग्स सिंपल, दैट इज व्हाट आई रियली वांट टू से। हाँ, so about this, so basically I prepared for RBI DEPR examination. So उसका preparation हुआ था from October to January में I had an interview for that. उसके बाद में then I prepared exclusively for prelims from March, April, May. So 3 months exclusively for prelims. That time I didn't do anything for optional and for Indian Economic Service examination because prelims preparation ही काफ़ी extensive होती है and you need to give time for that. You cannot compromise on that, right? उसके बाद में जैसे ही मेरा prelims का पेपर हुआ था, then उसके बाद में मैंने सोचा था because my first priority was civil services examination. So I thought कि जो भी मैं अब civil services में मेरे areas होंगे, converging होंगे, I will first prepare them and then जो भी टाइम बचेगा मैं और जैसे मैथ्स, क्वांट, इकोनोमेट्रिक्स, जो भी जितना मैं कर पाऊंगा आई विल डू इट। एंड मुझे इतना पता था कि क्योंकि मैंने अंडर ग्रेड में और पोस्ट ग्रेड में आई हैड कॉन्फिडेंस कि जो मैंने नॉलेज डेवलप करी है दैट आई विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस इन एग्जामिनेशन, सो आई टुक दैट मच रिस्क। मैंने सारी चीज़ें एक्सटेंसिवली प्रिपेयर नहीं करी थी उस टाइम पीरियड में, जो चीज़ें मेरे को लग रही थी कि हाँ मेरे को सिविल सर्विसेज में काम आएगी, बिकॉज उस टाइम पीरियड में मैंने जीएस का प्रिपेयर नहीं किया था, तब मैंने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्रिपेयर किया था for that entire month from 30th to 20th June। 20 जून को हमारा एग्जाम था इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का, तब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल का प्रिपेयर किया था। फिर जब वो पेपर हो गया आईएएस का, फिर आई शिफ्टेड टू जीएस प्रिपरेशन एंड इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। तो उसके लिए मेरा यही सजेशन है कि आपको पहले थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा बिफोर February, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स इज बिकमिंग सो अनसर्टेन दैट यू हैव टू गिव एटलीस्ट 4 months फॉर इट, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी।
स्पीड वो टेस्ट सीरीज से मैनेज हुई ना, जैसे सिविल सर्विसेज में आई रोट जीएस टेस्ट सीरीज, सो वो मैनेज हो जाती। और अभी मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में क्या होता है, व्हेन वी आर राइटिंग इन अ रिलैक्स एनवायरनमेंट एंड वी आर नॉट राइटिंग इन अ टाइम बाउंड मैनर, तो हम, ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हर कोई थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है। हर क्वेश्चन में इफ़ यू टेक 2 मिनट्स एक्स्ट्रा, तो 20 मिनट्स में इट गोज 40 मिनट्स एक्स्ट्रा, एंड व्हेन यू लुक एट दैट तो आपको लगता है कि अच्छा 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, 4 घंटे लग रहा है, आई हैव टू कंप्लीट अ 3 आवर पेपर, राइट। बट व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन देन यू रियलाइज कि इतना प्रेशर होता है दैट योर हैंड डजंट स्टॉप, आपको बस लिखते ही रहना है, एंड योर ब्रेन इट वर्क्स लाइक अ क्लॉक, इट्स वेरी सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो पेपर कंप्लीशन का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आपके पास कंटेंट है, आपको समझ है, राइट। तो इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग भी वर्क हो जाती है। अगर आपके पास टाइम है टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन, देन आई थिंक दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, उसका कुछ नहीं है। बट क्योंकि टाइम कंस्टेंट होता है, और मैं इतना हार्ड वर्किंग नहीं था एक्चुअली, तो मैंने इतने नहीं करे क्वेश्चंस, बट हाँ अगर कोई कर पा रहा है देन दैट इज द बेस्ट थिंग, उसका तो कोई दूसरा कोई वो है ही नहीं, दैट इज द बेस्ट थिंग। बट इफ यू आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन, यू आर नॉट एबल टू राइट the complete answer, then you can brainstorm that what points I will write in this question. You just write key points in that, right? And then you check from ChatGPT. Now use ChatGPT as much as you can for model answers, कि इसमें और एग्जाम्पल्स कैसे मैं अच्छे ऐड कर सकता था, कौन सा डेटा पॉइंट्स मैं इसमें ऐड कर सकता था, एंड जस्ट राइट इन दोज क्वेश्चंस ओनली। फर्स्ट यू राइट योर क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन ऐड दोज थिंग्स देयर, एंड व्हेन यू आर रिवाइजिंग देन रिवाइज फ्रॉम द क्वेश्चंस ओनली, you don't have to revise the content again, फिर आप questions revise करो, क्योंकि at the end this is about questions, आपको एग्जाम में questions ही लिखने हैं, तो I think that will work. Yes? So I like reading newspapers, but जब भी एग्जाम्स आते थे so उसके 1 महीने पहले I stopped reading newspapers, and as far as magazine is concerned तो I didn't read any magazine and I comfortably cleared UPSC prelims. So I don't think so that reading Vision PT 365 is prerequisite or is mandatory for clearing this examination, because you will realize कि कुछ भी नहीं आता उसमें से, जो लोग पढ़ के भी गए थे वो बोलते कुछ नहीं आता है। It is just that कि आप, क्योंकि आपको fear of missing out नहीं हो, you are just reading it, but actually very less questions are being asked from that. Rather than, मेरा ये मानना था कि मैं current affairs पे इतना टाइम स्पेंड करूँ, I will spend more time on my standard knowledge, because standard knowledge is important of your standard sources, NCERT, your polity knowledge, your economy knowledge, and other subjects like geography knowledge. So this standard जो knowledge है, जो conceptual knowledge है, वो ज़्यादा important है, क्योंकि आप देखो कि अगर आप पेपर को एनालाइज करोगे so 40% ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, राइट। तो उससे आप कितने मार्क्स अश्योर कर सकते हो? 80 मार्क्स, राइट। आपको अगर कंफर्टेबल रेंज में पहुंचना है देन यू हैव टू स्कोर समवॉट लाइक 100 to 110। उसमें कब होगा वो आपको PYQs को प्रैक्टिस करने से समझ आएगा, जो मैंने बोला आप कैसे पैटर्न एनालाइज कर सकते हो, ऑड वन आउट ऑप्शंस, डेटा पॉइंट्स की डेटा आ रहा है तो सही हो रहा है नहीं हो रहा है। दिस इज अबाउट prelims, right? And about mains it is like how much more you can think. It's very simple. And ये ध्यान रखना कि question आपको लगेगा कि current affairs आया है, but actually from your static knowledge also you can answer. Why I am saying so? क्योंकि current affairs is so vast, आप उसमें you can actually miss out on that if you are preparing extensively on that. So first priority should be static. Yes, if you are getting time then you can obviously do current affairs, but static should never be compromised. Yeah. Yes, sir. So I have Mohit with me. Mohit is IES topper this year, rank 1. Come, Mohit. God bless you. Come. आओ। मोहित और संभव ये दो मेरे बड़े जबरदस्त दो हाथ हैं। So मोहित संभव के साथ ये this is for Mohit and round of applause. Mohit, ye from my side. So Mohit has been rock steady. Mohit has already qualified Rajasthan Administrative Service. तो ये working थे already. और civils का interview पिछले साल इन्होंने दिया था और इस साल भी mains लिख रहे हैं. So he is quite accomplished that ways. He has had a decent journey. And he is, the best part about both of them is their humility. तुम दोनों से बात करोगे तो सच्चाई बोलते हैं. So I thought Mohit can also talk to you along with Sambhav, and you can gain from their knowledge
क्वाइट अ बिट. तो पहले मैं संभव को कंप्लीट कर लेने देता हूँ जो वो बोल रहा था, एंड देन इट्स कंप्लीटेड. अच्छा. सो हमने कहा बहुत बुलवा लिया तुमने मुझे. सो इट्स नो एक्चुअली ग्रेट, बिकॉज ये जैसे मैं आप लोग हैं, ऑल ऑफ यू आर माई चिल्ड्रन. सो सिमिलरली आई बिलीव दीज टू आर माई चिल्ड्रन ऑलवेज. और कुछ बच्चों के साथ लगाव बढ़ जाता है क्योंकि बातचीत बढ़ जाती है. सो बोथ ऑफ देम वर इन दैट ट्रैक जहाँ हमारी लगातार, इनफैक्ट मुझे याद है आई वेंट आउट ऑफ द क्लास, मैंने मोहित का मैसेज देखा, संभव का मैसेज, इन दोनों ने मुझे सबसे पहले मैसेज किया था. मुझे लगता है घर से मैसेज किया और उसके बाद मुझे ही मैसेज कर दिया था दैट दे सेंट द मैसेज, दैट्स ऐसा ऐसा रिजल्ट आ गया है. सो आई विल हैंड ओवर टू मोहित. ही इज, आई रिपीट, ही इज एन इंजीनियर turned economist. Some credit goes to me. तो ये इंजीनियर से इकोनॉमिस्ट बना दिया मैंने इनको. so he is a trained engineer, he's a mining engineer but a trained economist also now, and now joining IES as top ranker. And I again repeat, civils में भी इन्होंने इंटरव्यू दिया है, and last year and this year again he has written his mains. So he has quite some experience like Sambhav. He has also appeared mains this year. तो आप लोग पूछिए इनसे जो भी आपके दिमाग में आता है, and we can always go forward. So मोहित पहले अपनी थोड़ी जर्नी शेयर कर लो, then maybe. थैंक यू सर. आपने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मेरा दिया है तो आई एम रियली ग्रेटफुल. संभव के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस. वी विल जॉइन टुगेदर, ही इज़ माय कलीग नाउ. सो पहले आप सबको थैंक यू कि एटलीस्ट आप मेरे को सुन रहे हो. इट इज़ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब पहली बार ही है मेरी लाइफ में तो कि आई एम एड्रेसिंग दिस मच ऑफ क्राउड, एटलीस्ट स्टूडेंट्स. बाकी को तो किया है. तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ. मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ. राजस्थान में एक नदबई तहसील है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं वहाँ से हूँ. और वैसे मेरा बैकग्राउंड जनरली हिंदी मीडियम से ही मेरी एजुकेशन रही थी इनिशियली. इंग्लिश एजुकेशन मेरी कॉलेज में हुई जो मैंने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद माइनिंग इंजीनियरिंग से किया है. ड्यूअल डिग्री कोर्स था जो बीटेक और एमटेक था. तो एट दैट मोमेंट आई थॉट कि आई शुड गो फॉर द सिविल सर्विसेज एंड आई एम हेयर फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, जैसे सर ने बताया भी था. बट मेरी जो जर्नी है वो सिविल सर्विसेज की ही है एंड इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का बहुत लिटिल पार्ट है उसमें. तो आई थॉट ड्यूरिंग माई फाइनल ईयर कि आई वॉन्ट टू जॉइन सिविल सर्विसेज एंड मुझे ऑप्शनल लेना था. ऑप्शनल में मेरे पास ऑप्शंस थे, मैथमेटिक्स का था और इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट का था. तो आई चोज इकोनॉमिक्स, बट चोज तो मैंने कर लिया बट आई डिड नॉट नो कि कैसे अप्रोच करना है इस सब्जेक्ट को. एंड एवरीवन सेड कि इकोनॉमिक्स तो बहुत, मतलब इसमें नंबर ही नहीं आते. मैं सीधे सीधे एक लाइन कहूँ तो इकोनॉमिक्स ले तो लोगे पर मार्क्स नहीं आएंगे. सबने मुझे यही बोला था. तो बहुत डिफ़िकल्ट था. और बट मुझे लगता था कि एक इकोनॉमिक्स की तरफ मेरा झुकाव था शुरू से ही. माइनिंग में भी हमारे कोर्स वर्क होते थे तो उसमें भी माइनिंग इकोनॉमिक्स करके फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स थी. तो मुझे लगा कि ये एक सब्जेक्ट है जो एक्सप्लोर किया जा सकता है एंड इट हैज़ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन लाइफ. अगर अनफॉर्चुनेटली सिविल सर्विसेज में नहीं होता है तो इकोनॉमिक्स एक फॉल बैक ऑप्शन भी बहुत अच्छा रहेगा. बट एट दैट मोमेंट आई डिड नॉट रियलाइज कि कैसे करना है. तब मुझे मिले थे विवास सर. मैं इंजीनियर था, रग रग में इंजीनियरिंग है, मैं आज भी इंजीनियर ही हूँ. और अभी मैं प्रशासनिक सेवा में हूँ तो मैं वहाँ पे भी माइनिंग में ही घूमता रहता हूँ. जो भी गाड़ी लेके माइनिंग में चला जाता हूँ मैं. तो माई इंजीनियरिंग है बट इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट थी जो मुझे करनी थी. और विवास सर की पहली क्लास थी, मैंने पहली क्लास मिस कर दी थी सर की. सर दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे. मुझे उस क्लास का आज भी दुख है. मैंने एक क्लास मिस करी थी और आज भी मैं सोचता हूँ कि काश मैंने वो क्लास मिस नहीं करी हो. और लगभग 3 जून से हमारा बैच शुरू होने वाला था, मुझे याद है अभी भी 2018 में. तो मेरी जर्नी बहुत लंबी है. 2018 से लेके आज मेरा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में हुआ है और अभी भी मैं सिविल सर्विसेज तो दे ही रहा हूँ. तो सर मिले थे, सर की वजह से ही मैं, मतलब अब आप किसी भी तरह से इस चीज़ को ले सकते हो बट इकोनॉमिक्स, अगर मैं एक इंजीनियर से एक इकोनॉमिक्स की तरफ, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं बोलूँगा अपने आप को बट यस कि मैंने बहुत कुछ सीखा और इकोनॉमिक्स को एक अपना धर्म मान लिया. उसका रीज़न ये है कि विवास सर मेरे साथ थे.
विवास सर ने थ्रू आउट माई जर्नी 2018 से लेके आज भी और अभी भी वो कर ही रहे हैं। ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट। मैं मतलब आप भी देखते होंगे, आप स्टूडेंट हैं सर के, तो कभी भी मैसेज कर दो, ही इज़ एक्सेसिबल। बात सर को टाइम नहीं मिलता फिर भी ही समहाउ मैनेजेस कि भाई टाइम निकाल लूँ। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे इंटरव्यू शुरू हो रहे थे बहुत ही जल्दी, इस बार इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के इंटरव्यू करा दिए, तो 15 सितंबर से इंटरव्यू थे। सर का अनफॉर्चुनेटली कहीं एक्सीडेंट हो गया एंड ही वाज इन लॉट ऑफ पेन, बट सर को पता था कि मेरे स्टूडेंट्स हैं एंड उनको मॉक लेना है, इनका मॉक इंटरव्यू लेना है। ही पता नहीं इनके अंदर कहाँ से एक एनर्जी आ जाती है जब स्टूडेंट्स की बात आती है, तो पता नहीं कहाँ से, मतलब कुछ भी हो रहा हो बट हमें दिखाएंगे ये भी नहीं। हम मेरा मॉक ले रहे थे, बाकी लोगों से भी मेरी बात हुई, यहाँ पे फिजिकल मॉक लिए हैं सर ने, मतलब किसी को भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि आई एम इन द पेन, और इतनी स्मूथली ही कंडक्टेड एवरीथिंग। तो जो इनके बैक में जाता है, जो पीछे जाता है ना, पता नहीं इतनी एनर्जी ये हम लोगों के लिए कैसे ले आ पाते हैं। ही डिड इट समहाउ एंड आई एम ग्रेटली, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मैं इतना बोल भी नहीं सकता सर के लिए कि कितनी बड़ी चीज़ है ये। एंड नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आई वॉज सो एरोगेंट। मैं इंजीनियर था, मैं टॉप इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हूँ इंडिया के, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, माइनिंग इंजीनियरिंग में बेस्ट इंस्टीट्यूट है, और मैं बहुत एरोगेंट हुआ करता था, मैं ढंग से बात भी नहीं करता था लोगों से, पर सर हैज़ ट्रांसफॉर्म मी एज ए पर्सनल। तो एज ए एक इंसान की तरह एक इंसान होता है ना, आप लोगों की ह्यूमिलिटी जो आई है, सर कह रहे हैं कि मोहित को देखोगे ह्यूमिलिटी आएगी, पर ह्यूमिलिटी भी इन्हीं की देन है। मैं बहुत ही अलग पर्सनैलिटी था पहले, तो सर थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। सिविल सर्विसेज और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के बारे में मैं अपने बारे में ज़रूर बताऊंगा कि 18 में मैंने सर से क्लासेस ली थी। ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस 3-4 साल का ब्रेक लग गया था, मैं पढ़ नहीं पाया, पढ़ाई नहीं हो पाई, कुछ भी नहीं हुआ। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2022। मेरा पहला अटैम्प्ट भी IES में 2022 में ही है। तो जब मैं ब्रेक लगने के बाद स्टार्ट कर रहा था दोबारा से, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप जॉब में हो एंड बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक जॉब है एंड स्टिल यू वांट टू बी समथिंग एल्स। तो उस टाइम पे, उस मोमेंट पे सर ही थे जिन्होंने ये कहा था कि तुम कर लोगे। उस मोमेंट पे ऐसा मोमेंट आ जाता है कि जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता, घर वालों को भी डाउट होने लग जाता है कि अब कैसे करेगा, कैसे उठेगा, जब इतना कुछ हो चुका है ख़राब। तो जो जॉब है वही करो, क्या ज़रूरत है अब आगे तैयारी करने की, आगे पढ़ने की। इन दैट मोमेंट ऑल्सो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी बहुत रूरल बैकग्राउंड से हूँ, तो बहुत ज़्यादा उनको भी नहीं पता कि कैसे होती हैं चीज़ें। उस मोमेंट पे भी मैं सर को मैसेज करता था एंड ही, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं कितना बेकार स्टूडेंट हूँ सर का, कि अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड स्टिल उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं करवाया मुझे कि तुम नाकारा हो तो बेकार हो। ही ऑलवेज सेड कि तेरा हो जाएगा भाई, कर तो सही। तो वो मोमेंट होता है ना, जब कोई भी नहीं हो रहा तो एक तिनके की ज़रूरत होती है, देन ही हेल्प्ड। मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ आज, मैं बेवास सर से बेटर कुछ है ही नहीं है, ही इज़ द वन। ठीक है, तो 2022 में मैंने पहली बार इंडियन इकोनॉमिक सर्विस दिया, और जी कुछ बोल रहे हैं या ओके। तो पहली बार मैंने IES दिया था, और उस मेरा जो प्रिपरेशन है कभी नहीं रही है, सिविल सर्विसेज की ही थी। तो एक चैलेंज हमेशा रहता था कि जो प्रीलिम्स आता है सिविल सर्विसेज का, मेंस जो इसका रिटर्न पे पार्ट आता है, जो 20 से 25 दिन का ही टाइम मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स और रिटर्न एग्जाम ऑफ दिस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। तो 20 दिन के अंदर इट्स वेरी डिफिकल्ट कि जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का जो कोर पोर्शन है, जो ओवरलैप नहीं करता है ऑप्शनल के पेपर के साथ, वो कंप्लीट हो जाए आपसे। वो इकोनॉमेट्रिक्स का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, जिसमें आपको समझनी ही पड़ती हैं कई चीज़ें। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है जो मेजर पोर्शन आता है GE3 में। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, और फोकस यही किया था कि ऑप्शनल पे जितना मैं अपना जो सर ने सब्जेक्ट पढ़ाई थी उसी पे मैंने पूरा ध्यान दिया था। एंड एवरी ईयर मैंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, 2024 में दिया है, और 2025 में 3 अटैम्प्ट दिए हैं मैंने, और तीनों में मैंने इंटरव्यू भी दिया है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में। द रीज़न वाज इनकी टीचिंग्स। मतलब वही वाली बात है कि हम लोग हंसेंगे इस बात पे, पर नोट्स पढ़ते हैं, सर क्लास में नोट्स लिखाते हैं इतने अच्छे से, उन नोट्स को अगर कोई रट ले और जैसे कि तैसे भी आप पेपर में छाप के आ जाए ना, तो हो जाएगा सिलेक्शन। पर वो भी नहीं कर रहे हैं। ये गलती मैंने भी करी थी कि
मैंने यहाँ क्लास ले ली, फिर मैं कहीं और से भी कुछ पढ़ रहा हूँ, कहीं और से भी कुछ कर रहा हूँ, और मुझसे हो कुछ नहीं पा रहा है। तो जो सर करा रहे हैं, मुश्किल से 1000 पेज के नोट्स होंगे। मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी थी, आपकी छोटी हो सकती है। 1000 पेज की, 1200 पेज की नोट्स हैं। उनको अगर रट लिया जाए तो आपका सिविल सर्विसेज में भी 270 275 से ऊपर नंबर आ जाएंगे ऑप्शनल में, और इसमें तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। दिक्कत ये थी कि वो भी जो मेरे शुरू के इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स थे, मैंने वो भी ढंग से नहीं किए। दूसरा, मेरा पेपर छूट जाता था। द रीजन वॉज दैट ओनली। दिस ईयर आई गॉट ओनली 110 इन इंटरव्यू, लोएस्ट मार्क्स, बट स्टिल आई कुड मैनेज टू क्वालिफाई विद द टॉप रैंक। क्योंकि जो नोट्स हैं उन्हीं को मैं रट के गया हूँ, उन्हीं को मैंने बार बार प्रैक्टिस करी थी। जो मैं आपको बताता हूँ, प्रीलिम्स हुआ था आई थिंक 25 मई को, जहाँ तक मुझे डेट याद है, एंड 20 जून से ये था। तो करीब 25 दिन मिलते हैं, 20 दिन ही मान के चलिए। 20 दिन में मैंने आई यूज टू राइट लाइक अ हेल। रोज 10 क्वेश्चन मैं रोज प्रैक्टिस करता था। उस प्रैक्टिस से ये हुआ कि मेरे जो कंटेंट कम है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है ऑप्शनल के कंपेरिजन में, रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा है। बट आई बैंक्ड ऑन माई प्रिपरेशन ऑफ ऑप्शनल, जो सर पढ़ाते हैं यहाँ पे। मैंने उसी को अच्छे किया, उसी को मैंने अच्छे से लिखा, एंड आई गॉट द टॉप रैंक। और इंटरव्यू में भी अगर कोई अच्छा लेके आ सकता है तो वो तो और ऊपर चला जाएगा। तो दैट इज़ द थिंग। बहुत यस। सो रिटन का स्कोर काफ़ी ज़्यादा था। और तो जिस चीज़ को मैं क्लास के नोट्स, क्लास की बातें सर की, जो और नोट्स के अलावा भी जो सर बातें करते हैं हाँ, मतलब कई नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे कलीग्स हैं, मेरे जूनियर भी थे जो सर की क्लासेस किए। कई लोगों का क्या मिक्स्ड रिएक्शन रहते हैं कि सर क्लास में बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, नोट्स कम लिखवाते हैं, कई बार डाइवर्ट हो जाते हैं। उस चीज़ को अगर ऐसे लोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। उनका कभी किसी का नहीं हुआ सिलेक्शन आज तक, मेंस भी नहीं निकला। अगर वो ऐसे सोच रहे हैं, मतलब ऐसे मैं ब्लंटली नहीं कह रहा, पर रियलिटी बता रहा हूँ मैं यार। सर जिस मोमेंट क्लास में एंटर करते हो, जब तक जाते हैं, अगर आपने थोड़ा भी डाइवर्ट हुए तो आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। वो कभी नहीं आएगी लाइफ में। मैंने पूरी कोर्स के अंदर सर की 2 क्लासेस मिस करी हैं। पहली क्लास जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें मुझे आज भी वो है रिग्रेट, एक था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जब सर पढ़ा रहे थे। उस टॉपिक को पढ़ने में, उस टॉपिक को समझने में मुझे इतना वक्त लग गया, मैंने क्लास मिस करने के बाद मुझे बहुत रिग्रेट होता था कि यार मैंने क्लास वो कैसे मिस कर दी। तो क्लास तो कभी मिस करना ही मत। अगर आपके 10 मिनट भी चले गए ना तो बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी आपने। सर कुछ भी बोल रहे हैं सुनो, और हो सके तो स्क्रिबल करते चलो साइड में, ठीक है, नोट्स ये। और तीसरी चीज़, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो सर का जो लेक्चर होता है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का यूट्यूब पे, अगर वो कर लिया तो मतलब 551 जो मेरे आए वो 600 भी हो सकते थे। मैंने तो उतना भी नहीं किया। मतलब मैं बता रहा हूँ कि इंसान, आप इतना कर सकते हो, बट कोशिश वहाँ होनी चाहिए पहुँचने की। बट अगर आप उसके 60% 70% में भी पहुँच रहे हैं, स्टिल यू कुड मेक इट। पूरा भी नहीं करना है, पर वो करने की हिम्मत होनी चाहिए कि मैं आई वॉन्ट टू अचीव दैट पार्ट। स्टिल आई एम थिंकिंग कि सर ने जितना पढ़ाया है उतना मैं कर लेता पूरा और अच्छे से, और कितने इम्प्रूव हो सकते थे मार्क्स। तो इधर उधर भागने की बजाय फोकस ऑन जो सर पढ़ा रहे हैं, इट इज़ मोर देन इनफ। प्रैक्टिस के लिए जस्ट आई वुड से कि PYQs हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, उनके सॉल्यूशन जो सर इतने अच्छे सॉल्यूशंस होते हैं उसके, वो समझना, उनको रटना, 10 बार रिवाइज करना और उनको रटना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उनको भी 10-20 बार रिवाइज करना। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट एग्जाम। सीट्स ऐसा लगता है प्राइमा फेसी कि सीट्स 12, 15, 10 ऐसी सीट्स आ रही हैं। सब लोगों का यही कहना होता था अभी तक कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में तो इतनी कम सीट आती हैं, 5 सीट 4 सीट जनरल की, है ना, कितना डिफिकल्ट है। बट फ्रॉम द मोमेंट 1, मतलब मैं बता रहा हूँ, मुझे एग्ज़ाम कभी टफ लगा ही नहीं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। द रीज़न इज़ कि जो कैंडिडेट्स हैं अराउंड 2000 के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं। मैंने UPSC से डेटा मंगवाया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज़। और 2000 के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं, 1000 के आसपास पेपर देने जाते हैं। उसमें भी 1000 में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू के 2 पेपर देने जाते हैं,
इंडियन इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और इंडियन वो जनरल स्टडीज़, उसके बाद वो भी खाली हो जाते हैं। तो कंपटीशन 500-600 बच्चों में है, सीट्स उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आप देखोगे रेशियो सिविल सर्विसेज से कंपेयर करोगे तो दिस एग्जाम इज़ वेरी वेरी इजी। सिविल सर्विसेज तो बहुत ज़्यादा, इसमें आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सर जो पढ़ा रहे हैं बस दैट्स इट। न्यूज़पेपर भी आप एक हद तक स्किप कर सकते हो। तो जो सीट्स आपको कम दिख रही हैं वो कम है नहीं, रियलिटी में कंपटीशन इज़ वेरी लेस। तो डॉन्टिंग नहीं बनाना है खुद को कि सीट्स कम है तो पहले से ही हाथ पैर फूल जाते हैं कि ये एग्ज़ाम कैसे होगा, इतनी कम सीट आ गई। जो सर पढ़ा रहे हैं इट इज़ द बेस्ट कंटेंट। मतलब मैंने सारी चीज़ें देख ली हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा। भिवास सर के अलावा मुरनाल सर हैं जो वो इंडियन इकोनॉमी का असली हैंग मुझे वहीं से आया था। पर अगर इन दोनों टीचर्स की बात करें तो मतलब दे आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट कंटेंट, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे GS3 हो इंडियन इकोनॉमी, चाहे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो, चाहे ऑप्शनल हो इंडियन, मतलब इससे बेटर आपको क्या ही मिलेगा। बट आपको करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग सारा ब्लेम अपने कोच पे रख देते हैं कि सर ने से पढ़ा और फिर भी नहीं हुआ। अपने बारे में झांक के तो देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्लास से छूटने के बाद अगर 2 घंटे आप नीचे टाइम वेस्ट करोगे तो कैसे सिलेक्शन हो जाएगा है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा। क्लास सर तो एक गाइड कर सकते हैं, आपको डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, पर मेहनत तो हमें ही करनी है। और ये बात भी पक्की है कि अगर हम मेहनत भी नहीं करेंगे और मतलब लापरवाही करेंगे, सर का नेचर कभी चेंज नहीं होगा। ये इनको पता सब रहता है कि कोई कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। पर ये कभी ऐसा, मतलब ये ह्यूमिलिटी वाली बात है ना, ऐसे कि सर के लिए सब स्टूडेंट्स बराबर है। कोई पढ़ने वाला टॉपर भी होगा इस क्लास में जो सर को पता है कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है और ही विल क्वालिफाई, और किसी को पता होगा कि ये नहीं पढ़ रहा है, सर का बात करने का तरीका सबसे बराबर है। ये तो हमें अपने अंदर झांकना है कि वही कंटेंट जो सर डिलीवर कर रहे हैं वो एक स्टूडेंट कैसे ले रहा है और दूसरा कैसे लेना चाहता है। कंप्लेन आप करोगे, आप सोचोगे कि सर तो बेकार है। कई लोग हैं ऐसे कह देते हैं कि विवास सर का ये है वो है, इसमें से नहीं आता। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बोल देते हैं कई लोग कि इंडियन इकोनॉमी सर तो बहुत जेनरिक पढ़ा देते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, अगर आपने ये कर लिया तो भाई मेरे नंबर बहुत अच्छे आए हैं ऑप्शनल में। मैं अभी इसको डिस्क्लोज इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे अभी आई एम इन द प्रोसेस, बट यू कैन टेक माई वर्ड्स। जो ये पढ़ा, हाँ, संभव भी बोल रहा है, देख लो। मतलब लिटरली यार देखो, ये हंसने आप उस चीज़ को ले सकते हो। हमारे ब्रेन की कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है, कई चीज़ें करनी होती हैं, और जिस तरीके नेचर है एग्ज़ाम का ये बहुत ज़्यादा बल्कि है। तो जितना हम कम पढ़ेंगे ना और उसको रिवाइज करेंगे, उसी को प्रोड्यूस कर देंगे, देन मतलब उससे बेटर कुछ है ही नहीं। इधर उधर दौड़ने की बजाय, भागने की बजाय, जो कहा जा रहा है, जो हमारे कोच इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस रहे हैं, ये मतलब ये तो हमारी किस्मत है कि हमें इनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है ना। और अगर हम उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो देयर इज़ नो यूज़। मुझे टाइम लगा, यस, मुझे मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है, 2018 से लेके अभी तक मैं कर ही रहा हूँ, अभी भी इन द प्रोसेस हूँ। और मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि जितना वक्त मुझे लग गया उतना आपको ना लगे। कई लोग होंगे जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, मैं उनके लिए भी आया हूँ कि भाई एक इंजीनियर को और भी सब्जेक्ट जो आप MA करके, मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से वो किया है MA, मतलब यू कैन एज द एग्जाम। आई हैव डिफाइड ऑल द ऑड्स। कि सब लोग मुझसे बोलते थे JNU, DSE, ISI से पढ़े हुए स्टूडेंट्स ही इसमें सेलेक्ट होते हैं, देख लो। मतलब एवरीवन से, यस यस मैम प्लीज, भैया बोल दो सब लोग, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। हम्म।
देखो इकोनॉमिक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, कई सारी चीज़ें हैं। अभी हम माइक्रो पढ़ रहे हैं तो माइक्रो की कई चीज़ें इंटरनेशनल में पढ़ोगे, मैक्रो पढ़ रहे हो तो वो डेवलपमेंट में दिखने लग जाती है। एनवायरनमेंट है जो पूरा सबको कवर कर देता है। तो अभी जब सर पढ़ा रहे हैं ना तो पूरा फोकस ये रखो समझने पे, जो सर पढ़ा रहे हैं समझो उसको। 3-4 महीने की तो क्लासेज हैं, इसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपकी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। पीवाईक्यू देखते रहो, मैं ये नहीं कह रहा पीवाईक्यू मत देखो, पीवाईक्यू साथ के साथ देखते रहो, पर ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये पीवाईक्यू नहीं आ रहा है और मुझसे सर ने पढ़ा दिया फिर भी मैं ये सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। क्लास को पढ़ो, पूरी 4 महीने की जब क्लास हो जाएंगी ना तो आपकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी सब्जेक्ट की। और जब सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो आप इंटरलिंक करने लग जाओगे, क्रॉस लिंकेजेस बनना शुरू हो जाती हैं सब्जेक्ट पे। और जब ऐसा होगा तो पीवाईक्यू का भी आपको हैंग आने लग जाएगा। तो पूरा फोकस अभी यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे क्लास में हम सर के क्लास करते हैं 2.5-3 घंटे की जो होती होगी, तो जब आ रहे हो ना तो मोटिव ये होना चाहिए कि क्लास आने से पहले 2-3 क्लासेस पुराना रिवाइज करके आएँ और थोड़ा सा पढ़ के आएँ कि जो सर पढ़ाएंगे कि क्या टॉपिक सर पढ़ाएंगे, तो वो बस इतना ही कर लीजिए। और पीवाईक्यू अगर अपने साथ में एक लिस्ट रखना चाहें पीवाईक्यू की तो वो रख लीजिए, वो सब अवेलेबल है ही आजकल बहुत ईजीली। पर पीवाईक्यू और क्वेश्चंस होना ना होना ये अभी की स्टेज नहीं है, ये बहुत लेटर पार्ट है। अभी समझना, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, सर जैसे पढ़ा रहे हैं और जिस तरह से एक फ्लो बनाते हैं चीज़ों का, वो एक फिलोसॉफी। अब जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर लें, है ना, तो एक फिलोसॉफी है कि आप कैसे कैसे क्लासिकल से आज न्यू केन्स तक कैसे आया। वो अगर अंडरस्टैंडिंग सर की बातों से समझ में आ गई तो फिर दिक्कत ही नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन हो सकता है पीवाईक्यू में नहीं भी पूछा हो। इस साल एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन आ गया था, अगर सर की वो ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, यही आया था कि क्लासिकल से केन्स के ऊपर कुछ था कि किस तरह से डिबेट का कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन था, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग, पर आया था। तो अगर वो डिबेट समझ में आ गई तो बहुत अच्छे से आप ग्रेट डिप्रेशन को कैसे कनेक्ट करना है, आज की कंडीशन को कैसे कनेक्ट करना है, यू कैन वेरी इजीली डू इट। तो जो सर बातें करते हैं वो ये बातें करते हैं जो पीवाईक्यू में भी कवर नहीं है, जो टेस्ट सीरीज में भी कवर नहीं होंगी, वो बातों में कवर हो जाएंगी। और वो क्वेश्चन पूछ लिया भी जाएगा, हो सकता है आज इस साल पूछ लिया, हो सकता है 4 साल बाद वो पूछा जाए, पर वो काम जरूर आएगी वो बात। और नहीं भी पूछा जाएगा तो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। तो अगर ऑर्गेनिक देखो, जनरली क्या होता है, कोचिंग की एक माइंडसेट रहता है सबका कि कोचिंग है तो स्पून फीडिंग हो रही है, और मेरा भी बिलीव नहीं होता कोचिंग वोचिंग का, मुझे भी कम पसंद है थोड़ा कोचिंग का सिस्टम। बट ये सब्जेक्ट ऐसी है, एक तो इकोनॉमिक्स, इसमें आपको ज़रूरत है एक कोच की, क्योंकि हम लोग बुक से पढ़ेंगे ना तो हमें लगेगा हमें समझ में आ गया, पर नहीं आता है। तो अगर सर तो यार मतलब ही इज़ लाइक अ फादर, तो इनसे तो कैसी भी बात कर लो, कुछ भी पूछ लो, कैसे भी। और इनका सब्जेक्ट पढ़ाने का तरीका, ये पढ़ाई क्यों रहे हैं, पहली बात तो ये कोचिंग में पढ़ाई क्यों रहे हैं मतलब ये हमारी किस्मत है कि हम इनसे पढ़ रहे हैं और ये पढ़ा रहे हैं, बताओ हम लोगों के लिए तो कर रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है ये सब करने की। तो एक अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़े प्रोफेसर से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है और इसको फ़ायदा उठाओ जितना ज़्यादा हो सके। जो अपनी सब्जेक्ट है इसकी फ़िलोसॉफी को समझ लो, फ़िलोसॉफी अगर समझ में आ गई, यस फ़िलोसॉफी अगर समझ में आ गई तो फिर कोई बात ही नहीं है। With respect to the nature of Indian Economic Service Examination, everyone should try it, everyone should give it. और 3 दिन जब पेपर लिखने जाएंगे, सुबह से शाम तक जब पेपर लिखते हैं तो पेपर देना एक बहुत बड़ा टास्क है। उसी को कोई कर ले तो मैं तो उसको बहुत बड़ा मानता हूँ कि भाई पेपर ही दे के आ गया तू इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का। 3 दिन आप लिखने का कितना बड़ा वो है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आंसर राइटिंग। या तो जैसे सर पढ़ा रहे हैं उस तरह से कर सकते हो, पीवाईक्यू को देख के कि कुछ भी आ रहा है, मतलब आप सर ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी या स्लट्स की थ्योरम या फिर ग्राफ बनाना बता रहे हैं कि कंपनसेटिंग वेरिएशन, इक्विवेलेंट वेरिएशन का क्या है, तो उनकी प्रैक्टिस कर लो, बनाना सीखो, क्योंकि डायग्राम इज़ द बिगेस्ट, बहुत मेजर पार्ट है अपने सब्जेक्ट का। उसकी प्रैक्टिस यू कैन डू और धीरे धीरे लिखने की आदत डाल दी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जितना नॉलेज का है, जितना सीखने समझने का है, उससे ज़्यादा है कि उसको अप्लाई करने का। कम नॉलेज के साथ हमें वो कम शब्दों में ही अप्लाई करना है।
उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जितना हो सके क्लास के बाद कर सकते हो, पर उससे डोंट परेशान नहीं होना है कि हमसे आंसर नहीं लिखा जा रहा या मेरे कलीग ने, मेरे पीयर ने मुझसे अच्छा आंसर लिख दिया। जनरली अभी तक की ये मेरी समझ रही है, इतने लंबा टाइम जर्नी है, जिन लोगों के नंबर कम आते हैं ना पर दे आर कंसिस्टेंट, जैसे 200 नंबर का पेपर होता है इंडियन इकोनॉमिक्स, अगर तुम्हारे 30-40 नंबर आ रहे हैं और किसी के 50-60 आ रहे हैं, तो और ये कंसिस्टेंट है, तो इस पर्सन की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है जो कम नंबर लेके आ रहा है। हमेशा ही जो कम नंबर लेके आता है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है अगर वो कंसिस्टेंट रह गया तो। ये इट्स लाइक ए कंपाउंडिंग इफेक्ट, आपका बढ़ता वो एक ऐसे शूट करता है स्कोर, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिमिलरली प्रीलिम्स में भी यही होता है, मुझे नहीं लगता सर ये है प्रीलिम्स के हिसाब से क्या? हाँ, तो प्रीलिम्स में भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने पेपर दिया होगा, कई लोग होंगे जो यहाँ पे आए होंगे उससे पहले पेपर एक बार अटेम्प्ट करके तो देखा होगा प्रीलिम्स का, तो 25-30 नंबर तो आगे होंगे ऐसे ही, तो सब लोगों को लगेगा कि हमारे तो 25-30 तो बिना पढ़े आ रहे हैं, तो 100 तो वैसे ही आ जाएंगे, वो इतना ईजी एग्जाम है। ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगा था, मुझे तो ये भी लगा था कि आई विल टॉप, पहली अटेम्प्ट में पहली रैंक। तो ऐसा लगता है, इट्स लाइक अ एक्सपोनेंशियल कर्व मेहनत का। जब आपको एक नंबर से मतलब 20 नंबर से 50 नंबर बढ़ाने में जितनी मेहनत लगेगी उतनी 50 से 60 में लगेगी, 60 से 70 में उससे डबल लगेगी, ये बढ़ता ही जाएगा। तो जब आपके 70-80 आ रहे होंगे, ऐसे कई लोग होंगे जो दे रहे होंगे 70-80 पे अटक रही होगी गाड़ी, बढ़ नहीं रहे होंगे नंबर, उसका रीज़न यही है कि वो मतलब उसके लिए एफर्ट डबल चाहिए, जितने आपने उतने करे उससे डबल। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि मार्क्स बढ़ने का ये सिस्टम रहता है, और मार्क्स को मार्क्स की तरह ही लीजिए। कोचिंग के एवेल्यूशन को, वैसे सर का एवेल्यूशन तो बहुत बेस्ट ही है, पर वैसे कह रहा हूँ जीएस वगैरह का अगर एवेल्यूशन हो रहा है तो उसको एज अ फेस वैल्यू पे मत लेना, ठीक है, एवेल्यूशन की तरह लो, ठीक है। तो आपने लिखा ना, हमको पता चल जाता है हमारे आंसर कैसा है। सबसे बड़ी बात है जब हम लिख रहे होते हैं वी नो कि कितने देने चाहिए इसमें, तो ज़रूरत ही नहीं है किसी की, ठीक है। बाकी अल्टीमेटली इन द एंड मैं यही कहूँगा कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, एक ट्रस्ट जरूरी है। आप जैसे स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, अभी भी मैं हेल्प ही ले जाऊँ और लेता रहूँगा जब तक मेरा नहीं होता है। तो जो सर करा रहे हैं उस पर ट्रस्ट रखिए, वॉट एवर ही इज़ टीचिंग, इससे बेटर कहीं है भी नहीं, ठीक है। इतना ही कर लोगे तो मतलब टॉप रैंक का, ये तो देखो किस्मत की बात है, टॉप रैंक आना तो, पर सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात श्योर है दोनों में। तो फोकस ये है कि जो सर पढ़ा रहे हैं उसको करना है, जितने अच्छे से हो सके उतना अच्छे से करना है। अगर उसका 70% भी कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरी यस यस जैसे मोहित ने कहा कि जब हम क्वेश्चंस देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार हमसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, हमसे 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे, ठीक है, कि 20 क्वेश्चन है उसमें से हमसे 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो विभा सर ने भी क्लास में बोला और मैं भी उसको वापस रिपीट करना चाहूँगा कि हमें रादर देन फोकसिंग ऑन दिस कि 2 क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे, हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि हमसे 18 क्वेश्चन बन गए। आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट अप्रोच दिस एग्जामिनेशन। मैं ये बात ऑफ माइक बोल हाँ, रहा हूँ, हाँ। माइक पे नहीं बोल सकता। ये गड़बड़ हो जाएगी। जब मैं पिछले इंस्टीट्यूट पे था वाजरा, तो वहाँ कुछ प्रोफेसर्स थे। अब जैसे आप लोग जीएस की क्लास में 500 लोग, 200 लोग, 300 लोग ऐसे बैठते हैं, 2-4 लोग बेचारे उनके वॉशरूम गए, कभी पानी पीने गए, ऐसे चले जाते हैं। वहाँ पर एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि जैसे ये 5 बच्चे जाते हैं ना, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। मैंने उनको भी यही, मुझसे तो बहुत बड़े हैं वैसे, मुझे उनको मैंने यही डिस्कस किया। मैंने कहा सर उन 5 को मत देखिए, उन 295 को देखिए, सामने बैठे हैं। So if you see those 295 who are in front of you, you will not be bothered about why those 5 are there. So focus should be at the right place. You know, don't see the 2 questions you don't know. सब लोग मुझे अपने बता रहे थे, हमेशा बोलता भी रहता है, जब से नहीं रहेगा, तब से जैसा वही देखा था, बोलता रहता है। Because unless you are not, अगर संभव हमने मुझे हमारे मुझे से पहले भी talking that unless your personality is not suitable to qualify this exam, they will not let you qualify. It's a very big challenge. तो पर्सनालिटी को सुनते जब जैसे तो मैं गाउरी की बात करता हूँ, चार पूछ लेकर जब तक तुम नहीं बनोगे उस तरह तुम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। कर बनने के बाद और गाउरी I don't know, even though I will not like it, but I don't know personally, I actually don't like it, but चलो वो तुम्हारी चॉइस होगी। बट अगर तुम्हारे राइटिंग को रिफ्लेक्ट हो रहा है, any defense, any
but for it. You know, down to it, but you are gone. They won't select you. I can sorry sir for the interruption. हाँ, और लास्ट थिंग जैसे मोहित ने बोला ट्रस्ट की, तो मैं भी यही बोलूँगा कि आप विभास सर पे यू कैन ट्रस्ट हिम 100% ब्लाइंडली, क्योंकि ये मेरे स्कूल टाइम पे भी मेरे को किसी ने बताया था कि आइदर यू ट्रस्ट एनीवन कंप्लीटली जो आपका टीचर है, या फिर यू डोंट ट्रस्ट एनीवन, फिर आप अपने खुद के पाथ पे जाओ. बट इफ़ यू आर ट्रस्टिंग एनीवन देन इट शुड बी 100%. फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50% इन पे ट्रस्ट कर लिया, 20% कहीं और फैकल्टी पे ट्रस्ट कर लिया, 20% किसी और राइवल कोचिंग के पास चले गए, फिर वो नहीं होगा. Because I can tell from my own experience, Mohit is also telling from his own experience. और सर के पास तो हमारे जैसे पता नहीं कितने टॉपर्स है, तो सर का एक्सपीरियंस तो आई थिंक 500 ईयर से ज़्यादा ही होगा सर. कि अगर हम एक साल 2 साल 5 साल गिने, तो सर का फिर शायद तक हजार भी हो ही गया होगा सर अभी तक. तो 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस, तो उस पर ट्रस्ट करो. एंड यही है, इट इज़ नॉट अबाउट स्कोरिंग 100%, इट इज़ अबाउट 50% जो आपका हो जाएगा अगर आप अपने नोट्स पे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे. पहले इसको कर लो, और चीज़ का तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता, इतना बड़ा प्रोसेस है सब कुछ. तो बस वही था. एक लास्ट बात ये कहूँगा कि द बिगेस्ट रीज़न इस बार मेरे इतने अच्छे नंबर हैं उसका ये है कि आई चोज द ऑप्शंस. जो ऑप्शंस आते हैं पेपर में बहुत तो सोच समझ के किए थे. जो जैसे जनरली इकोनॉमिक्स है तो इसमें मेजरली मैंने उन्हें पार्ट पे फोकस किया था जहाँ मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, जहाँ मैं उस कॉन्सेप्ट को इंडियन इकोनॉमी से रिलेट कर सकता हूँ या कोई एम्पेरिकल स्टडी कोट कर सकता हूँ. तो चाहे मुझे नॉलेज कम थी उन क्वेश्चंस में, बट अगर मेरे पास ये इंग्रेडिएंट्स थे तो आई चोज दोज. और रिस्क ली थी मैंने, तो मतलब आई टुक द रिस्क कि अगर मैं यहाँ रिस्क लेता हूँ मेरा क्वालिफाई होता है तो मैं यही स्ट्रेटजी सिविल सर्विसेज में फॉलो करूँगा ऑप्शनल में. तो यही मैंने वहाँ किया था. तो ऑप्शन चूज करना इज़ वेरी गुड, वेरी मस्ट इसमें कि आप किस तरह से. और इसमें बहुत इजी है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज तो बहुत इजी पड़ता है कि सिंगल क्वेश्चन आपको चूज करना होता है. ऑप्शनल में बहुत दिक्कत आ जाती है कि 3 क्वेश्चन आते हैं इकट्ठे. तो इट्स वेरी गुड थिंग. वहाँ पे आपको जहाँ पे आपको 10 में से 15 में से 6 नंबर दे रहे होंगे वो 8 या 9 दे देंगे. तो शायद ये बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि मेरे जो स्कोर इतना शूट किया है वो बहुत इसका. तो ये आप अगर चाहो तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो. सर रिवीजन का मेरा लंबी जर्नी बहुत लंबी रही है, तो काफ़ी बार रिवाइज कर लिया. और मेरा ये ऐसा था कि जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जाम्स हैं मैंने सारे दिए हैं, चाहे RBI ग्रेड बी DPR हो. आई क्वालिफाइड द रिटन पार्ट बट आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द RBI DPR, बट मेरे पास डिग्री नहीं थी उस टाइम पे, तो दे डिड नॉट अलाउ मी इन द इंटरव्यू. आई गेव गेट. तो मैं ऐसे कर रहा हूँ प्रैक्टिस ऐसे. तो वो कोई एग्जाम है जैसे आई वांट टू टारगेट गेट, तो सर ने जो नोट्स पढ़ाए उनको फिर से रिवाइज करने बैठ गए. तो विद इन 15 दिन 20 दिन मेरा ये इंटेंस फोकस होता था कि जो पढ़ा दिया उसको फटाफट रिवाइज करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसी है बहुत जल्दी भूलते हैं. तो माइक्रो बहुत मेजर चीज़ है जिसमें माइक्रो को बहुत जल्दी भूल जाते हैं. तो एग्जाम मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, एक एंकर के एग्जाम दूंगा इसकी वजह से मेरा रिवाइज होता जाएगा चीज़ें. तो मैंने कई सारे एग्जाम दिए एंड बहुत अच्छे से उनमें भी नंबर आए हैं. रिगार्डिंग अभी की जो रिसेंट स्ट्रेटजी ये रहती है कि माइक्रो मुझे लगता है सबसे टफ सब्जेक्ट है पूरे इकोनॉमिक्स में, और इसमें बहुत वक्त लग जाता है. तो सर के नोट्स थे, इसके बाद मैंने आहूजा के भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स उठा के वो मैंने अपने नोट्स में डाल दिए. उनके क्या करता था मैं कि PDF को निकाल के प्रिंट करके सर के नोट्स के साथ ही उनको एडिशन डाल दिया. तो एक ही जगह पे मैंने सारे नोट्स कंसोलिडेट कर लिए कि माइक्रो के ये नोट्स हैं, इसके अलावा मुझे कहीं कुछ नहीं पढ़ना है. मैक्रो के ये नोट्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. कहीं से भी मैंने कंपाइल करके सर के नोट्स में ही ऐड करते चला गया उनको. उसी में पेज जोड़ देते हैं, आप फेवी स्टिक से जोड़ दोगे, कुछ इस तरह से करना है. तो जब वो एक जगह रहेंगे सारे नोट्स तो बहुत ईजी है. फिर आपने टारगेट कर लिया कि आज मुझे मार्केट स्ट्रक्चर रिवाइज करना है, ठीक है हो जाएगा क्योंकि एक ही जगह पे तो है वो सारा. माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी बहुत इजीली क्योंकि एक ही जगह पे है. तो सारी मैं यही कहूँगा कि नोट्स जब सर पढ़ा रहे हैं तो हम स्क्रिबलिंग भी करेंगे, कहीं और जगह से भी एडिशन करने की कोशिश करेंगे. तो अगर इफ़ यू कैन तो वो स्किप आप एक पेज छोड़ भी सकते हो एक टॉपिक के बाद. अगर नहीं भी छोड़ रहे हो तो आप चिपका सकते हो पेज, पर कोशिश ये करना कि नोट्स कंप्लीट हों और नोट्स एक ही जगह पे हों, कंसोलिडेटेड हों. अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो बहुत आपका बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाएगा कि भाई यही पढ़ना है बस इतना सा है. और फिर क्या होता है रिवाइज का ऐसा है सर कि शुरुआत में हो सकता है मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज करने में 15 दिन लग जाएं, पर वो 15 दिन धीरे धीरे कर करके 15 मिनट भी हो सकती हैं, पर वो रिवीजन 50 बार करना पड़ेगा.
और एनीथिंग विच यू कांट रीड रिवाइज 20 बार उसको छूना भी नहीं है, वो वहाँ पे नहीं लिख पाओगे। एग्जाम में लिख ही नहीं सकते, उतना ज़्यादा प्रेशर रहता है। एंड वो जो सेकंड नेचर बन जाती है ना, जो चीज़ जो फिक्स है वही आप लिख सकते हो वहाँ पे। तो जितना हो सके कंसोलिडेट करके और यही करना बस। बहुत मतलब बहुत सिंपल प्रोसेस है, पर हम उसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इसको सिंप्लीफाई रखेंगे, और सर तो बार बार बोलते ही होंगे क्लास में, बट हम फॉलो नहीं करते हैं, पता नहीं ढीठ हो जाते हैं पता नहीं क्या मैं भी ऐसा ही था, तो धीरे धीरे हो जाते हैं आप। और जितना हम्बल रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे खुद के साथ, ये मत सोचना ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, लिख के एक भी नहीं देगा क्वेश्चन। ऐसा होता है ना, ये टॉपिक तो मुझे आता है, मैक्रो तो मैं कर लूँगा, और ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, क्वेश्चन एक भी नहीं लिखा है, अपने मन में ही ख्वाबी पुलाव बना रहे हैं। तो वो चीज़ मत करना, ऑनेस्ट रहना जितना हो सके, और मार्क्स जितने कमाए उतना अच्छा है टेस्ट सीरीज में, मतलब जो है जितने कमाएंगे उतना अच्छा है भाई सर मेरी तो जैसे सिविल सर्विसेज की रही है प्रिपरेशन, तो आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर। मैंने ट्राई भी किया न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने का, नोट्स भी बनाए, और पर मुझे एक दो अटैम्प्ट में फेल होने के बाद मुझे समझ में आ गया कि रिवाइज तो होते नहीं है तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना तो नहीं छोड़ा। आपने जो आर्टिकल्स, सर जैसे आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, कितने बहुत ही ज़्यादा एनरिच्ड आर्टिकल्स होते हैं, तो मैंने वो रीड करे, पर उनके भी नोट्स बनाना बहुत डिफिकल्ट है। मैंने वो भी ट्राई किया था, वो भी नहीं हुआ मुझसे। तो मैंने सोचा कि सबसे शॉर्ट काम क्या हो सकता है, कोर जो है, कोर मुझे स्ट्रॉन्ग करना है अपना। बाकी छोटा मोटा ट्रिवियल डेटा नहीं भी आएगा, ट्रिवियल चीज़ें मुझे नहीं भी आएंगी तो काम चल जाएगा। तो न्यूज़पेपर सर करंट अफेयर्स का मैंने ऐसे लिंक किया, जैसे भी आप कोई भी टॉपिक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पे FPO की बात हो रही है, तो आई विल मेक द नोट्स, जो भी मेरे नोट्स हैं, क्या कंडीशन क्या है, इंडिया में कितनी FPOs हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज़ हैं अभी, क्या इकोनॉमिस्ट हैं जो वैश्व गुलाटी हैं, उन्होंने प्रोफेसर ने क्या कहा है, ये सारी चीज़ें मैंने कर ली। अब उसमें कुछ एडिशन आता चलेगा, जैसे सर आप अपनी बातों में कहोगे इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करते हैं तो कई चीज़ें बताते हो, ऐसा नहीं है कि सर्वे की बात करते हैं सर, वो और भी चीज़ें बता रहे होते हैं। ऐसी बजट का डिस्कशन कर रहे हैं तो और भी बातें कर रहे होते हैं, तो उसको आप उसमें ऐड कर लो। रोज़ न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने की बजाय उसको कर लो। और होता क्या है कि एक टॉपिक पे एक एक चीज़ ही रखनी है, मतलब डेटा भी आपको हैंगओवर नहीं करना कि डेटा ही डेटा भरा हुआ है, वो याद भी नहीं रहेगा। तो सिंपल डेटा, दैट सिंपल केस स्टडी, नारायण मूर्ति वाली जो माइक्रो इरिगेशन की केस स्टडी है, वो मैंने जान कितनी बार यूज़ करी है मुझे भी नहीं पता। एक ही केस स्टडी को मैंने 5-6 क्वेश्चन में यूज़ कर रखा है, अलग अलग एंगल से। एक बार मैंने नारायण मूर्ति ETL करके लिख दिया, एक बार मैंने इकोनॉमिक सर्वे करके लिख दिया, उसको इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर करके लिख दिया। तो मतलब हर तरह से उसका तरीका होता है कि आप उसको सिनोनिम्स ढूंढ के कैसे आपको उसको यूज़ करना चाहते हो। तो कम करिए, डेटा भी लिमिटेड कैपेसिटी है, एम्पेरिकल स्टडी जो अखबार में आती हैं, जो संसद TV पे आती हैं, जो सर बताते हैं, उसकी भी याद करने की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। बट इट्स ऑल आइसिंग ऑन द केक। अगर केक रेडी है तो 500 नंबर आ जाएंगे, आइसिंग चाहिए तो 50-60 नंबर जो मिलेंगे वो ऐसे आएंगे। ठीक है, तो ये अप्रोच होनी चाहिए सर। तो सेम वही, मतलब कि टॉपिक वाइज ही हम ऐड करते रहे, बिकॉज न्यूज़पेपर के सेपरेटली नोट्स बनाने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप रिवाइज ही नहीं कर पाते, और अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे तो फिर आप उसको कभी एग्जामिनेशन में लिख भी नहीं पाओगे, क्योंकि वैसे ही इतना कम टाइम होता है। तो हमें कम से कम चीज़ रखनी है, जो मेन रेलेवेंट चीज़ें हम उसी डेटा, उसी करंट अफेयर में ऐड कर ले। और सर वैसे भी वीडियोस लाते ही है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, तो उससे ऑलरेडी आपके जो करंट अफेयर्स के डेटा वगैरह है वो अपडेट हो ही जाएंगे। और जैसे सिविल सर्विसेज की अगर बात करें तो उसमें फिर आपके पास आते ही है जो मार्केट में कंटेंट आता है, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल आता है, तो हम उससे थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं। बट अगेन मैं तो यही एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि मेन फोकस शुड बी ऑन ओनली ऑन द स्टैटिक थिंग, दैट इज ऑन योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। वो होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्शन। तो वही सर। Sorry, I'm playing the spoil sport coming in between, but there is a please better to do. But there is a better no wait better. Please. So there is a question online that those who are not preparing for civil services, how do they prepare their GS? The answer to that is do the last 7-8 year question paper very well. Try finding answer to those questions
and even if you have not prepared civil services, and we give you videos, जैसे मोहित कह रहे थे पिछले, in fact मोहित, we were lucky that मोहित got attached to me in the last year's batch also. मैंने ही बोला कि तुम आओ क्लास करो फिर से, we have brought many new things and all, but वो नौकरी कर रहा था तो पता नहीं कितनी क्लास कर भी पाया होगा. I am doubtful for 2018, क्योंकि जब मैं पहले जिस इंस्टीट्यूट पे था वहाँ पर IES के लिए अलग से पढ़ाने का टाइम नहीं मिल पाता था, वो देते नहीं थे. But thankfully at Next IES now I can teach you separately those 60 hours, 70 hours for IES, which adds more value because then I can train you even more compared to what I could do earlier. But anyways, तो GS के लिए जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं वो देख लो. But more important is last 8-10 years question paper, and I think these two will comment and tell me. But I think that basic NCERT should be written for history, polity, and geography. If you have done your basic NCERT history, polity, geography, read a normal newspaper like Indian Express, I think GS can be, and 7-8 years of past year paper. So the question I saw online that whether GS can be prepared by people appearing only economic services. मुझे लगता है यही करना चाहिए. तुम लोग कुछ ऐड करना चाहते हो तो मुझे बताओ. सर आई कम्प्लीटली एग्री कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जीएस पोर्शन के लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस भी आते हैं तो सिविल सर्विसेज मेंस में दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, कुछ कॉम्प्लेक्स आते हैं, दे गो लिटिल बिट इन डिटेल. पर यहाँ पे अगर इकोनॉमिक सर्विसेज में हम देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी में से ही आते हैं. तो एनसीईआरटी कर लो बस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बेसिक जो करंट अफेयर्स है जो कि न्यूज़पेपर से. और अगर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा और करंट अफेयर्स की ज़रूरत है तो वो भी आप ज्योग्राफी और जनरल साइंस का कर सकते हो फ्रॉम मंथली मैगजीन्स, किसी भी इंस्टीट्यूट का वर्क करेगा वो, एंड आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट. उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. विद रिस्पेक्ट टू IES, जो जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है ना, ये 100 मार्क्स का है. इसमें हाईएस्ट मार्क्स जो देते हैं वो 61 देते हैं. आप कितने भी अच्छा करोगे 61 हाईएस्ट मार्क्स हैं. तो इस साल मेरे 61 ही आए हैं उसमें GE जनरल स्टडीज़ में. हाँ, मतलब ये फिक्स है कि वो 61 ही हाईएस्ट बेंचमार्क है. वो हर साल मैं देखता आ रहा हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ. और उसके बेसिस पे वो स्केलिंग करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला रूल है कॉपी पूरी भरनी है. जितने पेज आ रहे हैं वो भरने चाहिए. अगर वो भर गए 45 नंबर आ जाएंगे. सिंपल रूल. मतलब लोग कहते हैं कि कॉलेज का एग्जाम नहीं है, पर ये कॉलेज का ही है. फुल कॉपी आप ऊपर से नीचे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, वो तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं. बट क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड पेरीफेरी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटी में कोई क्वेश्चन पूछा है गवर्नर के ऊपर कि गवर्नर की जो पावर्स हैं उस पर जो दीज आर इन द डिक्लाइन एंड इट इज इम्पैक्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, समथिंग लाइक दैट. एक क्वेश्चन आया तो गवर्नर पे आप लिखोगे ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर आप लिखोगे. बट एट द सेम टाइम एक बॉक्स बना के यू कैन कोट जो केस लॉज हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए, वो आप यू कैन राइट दैट. पेज भरना है कैसे भी भरना है, और पेज इतना ईजी भरना ईजी नहीं है. इट इज़ द लेंथीएस्ट पेपर IES में जनरल स्टडीज़. क्योंकि हम लोग तो तैयारी सिविल सर्विसेज की करते हैं तो उसमें बहुत लिखना पड़ता है, हम लोग कर लेंगे उसको. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट जो IES की तैयारी कर रहा है सिंपल और उसको GS का पेपर कंप्लीट कर ले. तो पहला टारगेट अगर आप पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो यू गेट 45. और सर का, जैसे मैं सर की वीडियो भी देखी थी, सर कई बार बोलते हैं कि दोनों पेपर में टारगेट्स आपके ये होने चाहिए, इंग्लिश और GS 100 मार्क्स लेके आने कैसे भी. 200 में से 100 नंबर चाहिए और 400 नंबर उसमें आने चाहिए. तो 100 नंबर लाने के लिए इंग्लिश आई थिंक यू कैन मच बेटर मैनेज दैट. बट GS का मैं बता रहा हूँ कि पेपर में आपको पूरी कॉपी भरी हुई दिखनी चाहिए उनको. और पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे और थोड़ा स्ट्रक्चर बना देंगे तो वो 61 वाली रेंज में आप पहुंच जाओगे. तो 45 लाने का ये तरीका है. और कुछ अगर टाइम मैनेज बहुत बड़ा चैलेंज है. सर जैसे कह रहे हैं कि नॉलेज एक अलग गेम है
कि हमें आता है, बट कई स्टूडेंट्स हमने देखे हैं, कई कैंडिडेट्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, दोज हु आर इन मस्ट नॉट बी इन, मतलब कई लोग हैं जो बाहर होने चाहिए थे और वो अंदर पहुंच जाते हैं, और बाहर वाले भी बाहर होने, जो बाहर हैं वो अंदर भी होने चाहिए थे। तो द रीज़न इज़ क्या है, उनके पास नॉलेज थी फिर भी वो नहीं अंदर गए। द रीज़न इज़ वो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा चैलेंज है, और आई बिलीव कि अगर कामनेस और ट्रैंक्विलिटी के साथ अगर वो पेपर दिया जाए तो आपके मार्क्स तो एकदम से बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। मॉक है, जैसे कि मॉक देते हैं हम, सर का इतना अच्छा वैल्यूएशन है, वहाँ पे आप दे सकते हो। मॉक देने की भी ज़रूरत नहीं, घर पे आप PYQ सॉल्व कर सकते हो, पर एक बार आपको करना ज़रूरी है। जब आप पेपर देंगे, पेपर प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि कौन से क्वेश्चंस मुझे अटैम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने। और कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन गलत चूज़ कर लेते हैं और आंसर हाफ वे लिखने के बाद वी रियलाइज़ कि ये तो नहीं हो पाएगा, फिर उसको काटोगे तो। और अगर आपने एक भी क्वेश्चन ऐसा कर दिया, 1 या 2, तो आपका पूरा जो कॉन्फिडेंस है वो गिर गया, आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा वो। और फिर वो पेपर खराब हुआ तो फिर एक रिपल इफेक्ट बाकी सारी पेपर्स पे आएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने का तरीका सिंपल सा ये है कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए। और जैसे कि मैं बता भी रहा हूँ, मेरे को तीसरा अटैम्प्ट है ये, है ना। तो उसका रीज़न बहुत बड़ा ये थी कि मैंने प्रैक्टिस पहले बहुत ज़्यादा नहीं करी थी, और तो मैंने ऑप्शंस भी गलत चूज़ कर लिए पहले। मुझे पेपर के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये क्वेश्चन करना चाहिए था रादर देन ये वाला मैंने पिक किया था। वो तभी होगा जब आप पहले से काम होंगे, कंपोज्ड होंगे, ठीक है। तो यही तरीका है। और वहाँ पे काम कंपोज का, अगर वहाँ काम कंपोज रहोगे ना, तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। सारी चीज़ें एक साथ वर्क करती हैं, कई फैक्टर्स होते हैं दैट वर्क्स ड्यूरिंग द एग्जाम आर। तो अगर आप पहले से ही चर्निंग कर लोगे, पहले से ही खून पसीना बहा लोगे, तो वहाँ पे फिर बहुत स्मूथ सेल है, बहुत ही स्मूथली आपकी चीज़ें निकल जाएंगी। संभव को कुछ बोलना है तो यस प्लीज़ एक बार। सॉरी जी जी जी, इंटरव्यू के बारे में मैं एक बार संभव तो तो अबाउट टाइम मैनेजमेंट, तो मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि ये 2 प्रोसेस का गेम है, जब एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के टाइम पे। तो एग्ज़ाम के पहले जैसे आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन का हमें देखना है कि अगर 10 मार्कर है तो सिविल सर्विसेज में इट इज़ लाइक 7 to 7.5 मिनट का क्वेश्चन, और 15 मार्कर जो होता है वो हमें 10 से 11 मिनट के अंदर करना होता है। और IAS में जब हम शिफ्ट करते हैं तो जो 10 मार्कर होता है दैट इज़ आई थिंक 8 to 9 मिनट्स, और ऐसे ही फिर 15-20 मार्क्स का ब्रेकेज हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सिंगल क्वेश्चन पे प्रिपेयर कर सकते हैं। कि जैसे हमने 10 मार्कर लिखा एंड वी नोट द टाइम कि हमको कितना टाइम लगा, राइट। उसमें फिर हमें देखना है कि कितना टाइम हमें सोचने में लगा, क्या हमें सोचने में 2 से 3 मिनट लगा या 1 मिनट लगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बॉडी लिखने में कितना टाइम लगा, फिर उसके बाद में कंक्लूजन लिखने में कितना टाइम लगा। तो आप उसको थोड़ा एक अपना आइडिया बना लो कि इफ़ यू आर थिंकिंग कि मेरे को सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, नाउ दैट सजेस्ट कि आपको रिविजन की ज़रूरत है, सो देन यू हैव टू शिफ्ट टू रिविजन, राइट। सेकेंड कि चलो मैं सोच पा रहा हूँ बट लिखने में मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है, सो देन दैट मे बी बिकॉज योर राइटिंग स्पीड इज स्लो। तो उस केस में फिर आपको राइटिंग स्पीड तेज करनी पड़ेगी, या फिर आपको कुछ और तरीका डिवाइस करना पड़ेगा। जैसे मेरे फ्रेंड्स ने डिवाइस किया था, उन्होंने सिविल सर्विसेज क्लियर भी किया। एक थी, शी यूज्ड टू राइट लेस, कि वो क्या करते थे, हर पॉइंट में शी यूज्ड टू जस्ट एक्सप्लेन इट इन 1 to 2 लाइन्स ओनली, बट उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स काफ़ी अच्छे होते थे। तो वही चीज़ है, तो आपको भी देखना है कि आप किसी चीज़ को ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नाउ दैट यू विल रियलाइज, जब आपने एक बार क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद में जाओ और देखो कि क्या ये जो ग्रामर थी इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी। सिविल सर्विसेज और इनमें यू डोंट हैव टू बी कि आपको ग्रामेटिकली एकदम सही होना है, आपको बस एक्सप्लेन करना है पॉइंट। तो आपको लगे कि अच्छा यहाँ पे इस आर एम की ज़रूरत नहीं थी, तो उसी टाइम पे उसको कट कर दो, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन लिखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ यहाँ पे मेरी गलती थी, राइट। उसके बाद में तीसरा कि अगर आपको इन कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में, इनमें टाइम लग रहा है, तो फिर आपको उसके लिए क्या करना है, आपको पहले से ही थोड़ी चीज़ें अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आई विल राइट दिस इंट्रोडक्शन एंड आई विल एंड ऑन दिस नोट, बिकॉज दीज टू आर द, यहाँ ये 2 चीज़ें होती है जहाँ पे हमें कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बिकॉज वी वॉन्ट कि हम इसको परफेक्ट डालें, बट एक्चुअली में तो जो मार्क्स मिलते हैं दैट इज फ्रॉम योर बॉडी। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इज लाइक एडिशन टू द थिंग, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो वो तभी होगा। फिर सेकेंड थिंग,
जो कि एग्जाम में करना है। तो एग्जाम में हम क्या कर सकते हैं, हम उसको शॉर्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि 30 मिनट्स का हमने टारगेट ले लिया कि इन 30 मिनट में हमें 4 क्वेश्चन करने हैं, राइट। अब अगर मेरे 4 क्वेश्चन हो रहे तो वेल एंड गुड, अगर अदरवाइज अगर मेरे 3.5 क्वेश्चन भी हो रहे तो मैं क्या करूंगा, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट करके कि मैं थोड़ी अपनी राइटिंग, मैंने जो राइटिंग साइज है उसको थोड़ा बढ़ा दिया ताकि मेरा टाइम उधर बच जाए, राइट। और मैं वापस नए क्वेश्चन पे स्विच करूं, क्योंकि एक बार अगर आप एक क्वेश्चन पे पीछे हो जाते हो ना वो फिर एक पूरा लूप बन जाता है, फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पेपर टाइम पे कंप्लीट करना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम शॉर्ट टारगेट्स ले, 30 मिनट्स 4 क्वेश्चन, मीनिंग 30 मिनट्स 4 क्वेश्चन। वहां पे सिंगल क्वेश्चन का नहीं लेना कि सिंगल क्वेश्चन 7 मिनट में होगा, क्योंकि कई क्वेश्चन होगा जो आप 8 मिनट लगेंगे, कोई क्वेश्चन होगा जो आप 6 मिनट में भी आंसर कर पाओगे। तो वहां पे हम शॉर्ट में ब्रेक करें। यही किसी भी प्रोसेस का यही जर्नी होता है कि अगर हम ट्रैकिंग भी करने जाते हैं तो हम एक टारगेट सेट करते हैं कि हाँ छोटे टारगेट्स ब्रेक करते हैं और फिर बड़े टारगेट पे पहुंचते हैं। तो वही आई थिंक टाइम मैनेजमेंट का एक तरीका है। This is my last question that I'm asking, but this is very important. I know many of you are in your first attempt, so you may find this question a little premature, but believe me, it is very important. I think both of them will tell you that. How to handle a situation when you are not qualifying? Say, आपने prelims दिया, prelims नहीं हुआ, या IES का exam दिया, पहले attempt में 250 नंबर आए. Something like that happens. So what was your share? How did you do things? So one by one, if both of you could tell me that what should be the method, because all of us, ये मुझे ऐसा लगता है that our worst training in our school education and college education is we never train you how to fail. No, we never train. I mean, मैं अपने बच्चों को कभी जो मेरे biological दोनों बच्चे हैं उनको कभी torture कर देता था बचपन में, that I would deliberately give them a tough question and they would not be able to succeed in that, and then that was the training of how to fail. Deliberately beat them in a cricket match. वो बच्चे थे तो obviously मैं हरा दूंगा, तो मैं बड़ा था, but I would deliberately beat them. I won't let them win. जैसे कभी पेरेंट्स होते हैं ना कुची-कू करने के लिए जिता देते हैं, नहीं जिताता था मैं उनको, हरा देता था बहुत बार, कभी जिता भी देता था. Sometimes I'd make them win so that they don't get completely despondent. Sometimes I would make them lose. When they lost, then I would train them how to overcome this loss. Sometimes I deliberately would lose from them and then react in a manner which can train them how to face when you have lost things. Say for example, for clapping for them, I would lift them, oh you've done a great job today, you won today, you know, and so on. So the basic idea is, what I want both of them to tell you is how did they handle it. But important is that once we stop fearing failure, then I think success is more easy to achieve. So that fearing of failure, और इन दोनों की जर्नी मेरे साथ काफ़ी दिनों तक रही है, बातचीत होती रही है, तो इन दोनों के केस में मैंने देखा that when they stopped worrying about, अभी संभव अपने MTS लिखने यहाँ आता था और मोहित के साथ, तो मैं कल की क्लास में तुम्हारी बात कर रहा था, मैंने कहा मेरी और तुम्हारी चैट कोई देखे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे तो उनको लगेगा कि भाई ये तो वाइफ से ज़्यादा मोहित से बात कर रहे हैं तो ऐसी हमारी बातचीत चलती रहती थी. सो या संभव को मैंने MTS में देखा यहाँ मेंस टेस्ट सीरीज में. सो देयर मेथड एटलीस्ट, और बाकी तो ये लोग बताएंगे, बट आई एम जस्ट कमेंटिंग, और इनके सामने ज़्यादा तारीफ इनकी नहीं करूंगा, नहीं तो फिर वजन बढ़ जाएगा इनका. बट यू नो, इनमें एक कॉमन चीज़ मैंने देखी, दैट दे वर फोकस्ड ऑन द प्रोसेस इन दीज लास्ट टू ऑड ईयर्स, कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द प्रोसेस. मुझे याद है मोहित को मैंने कहा था पिछली बार इंटरव्यू IES का जब नहीं हुआ था, तो मोहित को भी शायद याद होगा, मैंने कहा छोड़ना मत मोहित, ये काफ़ी क्लोज है. तो मोहित ने कहा था छोड़ूंगा नहीं सर, ही हैड सेड दिस. और संभव इस साल जब MTS दे रहा था, हम यहाँ पे मिले थे, तो मैंने कहा था संभव तुम्हारा हो जाएगा, लगे रहना. तो इसने बड़े मैटर ऑफ फैक्टली कहा यस सर. तो मुझे, आई मीन दैट अप्रोच आई लाइक्ड अ लॉट इन बोथ ऑफ देम, दैट बोथ ऑफ देम इंटरनली वर समवेयर कॉन्फिडेंट कि हो तो मेरा जाएगा, आई एम वेटिंग फॉर टाइम. बट हाउ डिड यू मैनेज, क्योंकि शेयर ऑफ नॉट हैविंग प्रीलिम्स कभी क्वालिफाई नहीं हुआ या लंबी जर्नी हो गई. सो व्हाट वाज योर मेथड, इफ वन बाय वन यू कुड शेयर. So sir, as far as failures are concerned, तो इस प्रोसेस, जो ये एग्ज़ाम का प्रोसेस है, तो मैं सबसे पहले तो यही क्लियर कर देना चाहूँगा लोग सबको कि जब भी आप इसमें एंटर करो तो आपको, यू शुड बी क्लियर इन योर हेड दैट दिस मे टेक 3 to 4 years, डिस्पाइट यू बीइंग द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन योर स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ. तो आप पहले से ही प्रिपेयर होके आओ कि कम 3 से 4 साल तो मेरे को लगेंगे. अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा है देन इट इज वेरी गुड. इट इज लाइक कि आपका लक भी उस टाइम पे चला और साथ में देयर वर थिंग्स व्हिच वर सपोर्टिंग यू, व्हिच वर
आउटसाइड योर कंट्रोल, राइट? सो वो चीज़ आपको पहले खुद को बहुत अच्छे से बतानी पड़ेगी कि हाँ, अगर 3 से 4 साल मैं दे सकता हूँ, देन आई शुड एंटर हेयर। अदरवाइज फिर आप अपने जो भी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए चीज़ें होती है, आप यू कैन डू दैट। सो वही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड, हमें ये चीज़ रियलाइज करनी पड़ेगी कि क्यों हम इसके पीछे आ रहे हैं, दैट वॉट शुड बी द main motivation for doing the preparation for these examination. Now that should not be just like कि जो काफ़ी superficial motivation होती है कि हाँ I will get reputation from society, कि मुझे respect मिलेगी, social approval मिलेगा, ठीक है? So that should not be the motivation. Motivation should be कि हम कितने लोगों की life में actual change ला सकते हैं. If you keep thinking like that, देन फिर अगर फेलियर भी आएगा ना, तो आपको पता लगेगा कि अच्छा ठीक है, कोई नहीं, और 1 साल वेट करते हैं, इसके बाद में हो सकता है और भी करना पड़े, पर कोई बात नहीं, एक दिन जब मैं इस सर्विस में एंटर करूंगा तो मैं कुछ अच्छा करूंगा। एंड द मेन गोल शुड बी टू एक्सेल इन योर लाइफ, नॉट टू एक्सेल इन दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि एग्जामिनेशन ठीक है, निकल गया, अभी हम लोग की किस्मत थी इसलिए निकल गया, ही विल ऑल्सो एग्री, बिकॉज इन 12 सीट्स इट इज लाइक अ लॉटरी थिंग, यू कैन नॉट गारंटी, क्योंकि हर कोई सेम ही प्रिपेयर कर रहा है। तो निकल जाए तो अच्छा, नहीं निकल जाए तो भी बहुत अच्छा, हम कुछ और करेंगे, कुछ और तरीके से हम कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में, वी विल नॉट स्टॉप। सो दैट शुड बी द अप्रोच। एंड व्हेन फेलियर्स कम, तो सिंपल चीज है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें शॉर्ट टर्म पे सोचना चाहिए कि चलो ठीक है, आज फेलियर आया, कोई नहीं, लेट्स कंटिन्यू स्टेइंग इन द प्रोसेस। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट, आप नहीं फोकस कर पाओगे, कोई बात नहीं, जस्ट पिक कि चलो आज मैं माइक्रो का 1 चैप्टर करता हूँ, एंड इफ आई डू दैट चैप्टर, देन I will watch social media और I will watch Netflix, so that आप खुद को रिवॉर्ड करते जा रहे हो उस प्रोसेस में, एंड यू विल ऑल्सो लव एंजॉइंग दैट। क्योंकि इस बात में मुझे विभास सर की भी एक बात याद आई कि वो कहते थे क्लास में कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि पहले हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं, रादर देन हमें लीजर के लिए टाइम निकालना चाहिए कि 2 से 3 घंटा मेरे को लीजर में निकालना है, तो उसके पहले मैं पढ़ाई करूंगा। तो दैट शुड बी योर अप्रोच। एंड मेरा तो सिंपल चीज होती थी इसमें कि क्योंकि जैसे मैंने एथिक्स पढ़ा GS4, तो उसमें इतनी सारी स्टोरीज होती थी कि जो आपको मोटिवेट करती थी, वैल्यू स्टोरीज, आपके स्पोर्ट्स एथलीट्स हो गए, जस्ट वॉच देयर स्टोरीज कि वो लोग तो कितने इंस्पायरिंग है। वो लोग जो एथलीट्स होते हैं वो ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, और ओलंपिक्स 4 साल में एक बार आता है, एंड देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट विन मेडल, वो 4th आ जाते हैं, मेडल नहीं जीतते, बट दे कीप ट्राइंग। व्हाट इज पुशिंग देम, दैट इज कि हाँ वो कुछ अचीव करना चाहते हैं। जस्ट लुक एट नोवाक जोकोविक, ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग इन हिज स्पोर्टिंग करियर, बट स्टिल ही इज पुशिंग हार्ड टू अचीव दैट एक्सीलेंस। सो आई थिंक आवर फोकस शुड बी टू अचीव एक्सीलेंस। जो 3 Idiots में भी कहा था कि भाई सफलता के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, तो वही हमारी अप्रोच होनी चाहिए। फिर चाहे एग्जाम निकले ना निकले, आप अपनी लाइफ में एक्सेल करोगे, और 4 लोगों को दिखाने के लिए कुछ मत करो, खुद को ही दिखाओ, बिकॉज no one else is going to put food in your plates. You yourself are going to do that. So अगर आप खुद खुश हो अपने से, then it is very good, और वही प्रोसेस को करो, and I think यही मेन तरीका होना चाहिए। संभव ने इतना कुछ कह दिया, पता नहीं मेरे पास कुछ है भी कि नहीं बोलने के लिए। फेलियर्स आर पार्ट ऑफ मी। मैं शुरू से ही फेल होता आया हूँ, और कभी मैंने टॉप तो नहीं किया, ना स्कूल में भी नहीं किया। मेरा तो स्कूल भी ठीक ठाक था, मतलब ज़मीन में बैठते थे हम लोग, ऐसे ही पढ़ते थे, बहुत अच्छा नहीं था। वहाँ पे भी मैंने टॉप नहीं किया। बट एक बात मैं कहूँगा कि कितने बच्चे, पहले पूछना चाहूँगा मैं यहाँ पे, कितने लोग हैं आप लोग कि जो मन से आए कि मुझे ये बनना है, हाथ खड़े करिए। और कितनों को मम्मी पापा ने भेजा है? किसी को नहीं भेजा, पर होंगे ज़रूर, आप नहीं कर रहे हो हाथ खड़ा। एक चीज़ है पर्पज लाइफ में, जब वो पर्पज क्लियर है तो फेलियर तो इट्स पार्ट ऑफ दैट। 2018 में जब मैं कोचिंग कर रहा था सर की, तो सर ने एक लाइन लिख दी, सर कैन आई यूज दिस पेन। जो कोई बात डाउट हो ना, बस इस बात को याद रख लेना, ये सर का रूल है। और जब हमारी क्लास खत्म हो रही थी, हम सर को फेयरवेल दे रहे थे, सर ने एक ही चीज़ कही थी, ऐसा होगा। सब लोगों को लगता था कि इसी अटेम्प्ट में निकाल देंगे हम, पर सर को पता होता है देखो रियलिटी क्या है, इट विल टेक ईयर्स।
ये बात याद रहनी चाहिए, और आपका पर्पज क्लियर होना चाहिए लाइफ में, देन नथिंग एल्स मैटर्स। आपको पता है कब उठना है, कब जगना है, कब क्या करना है। फेल है तो फेलियर्स भी तो, और तीसरी चीज़ एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए कि मेरे को इंटरव्यू में कम दे दिया इसलिए नहीं हुआ, मेरा जीवन में इतने आ जाते तो मेरा हो ही जाता। दिस इज द डिफेंसिव माइंडसेट। वो आपको ऊंचाइयों पे, आपको पिनेकल पे नहीं पहुंचाएगा। डिफेंसिव कभी नहीं बनना है। फेलियर है तो क्या रीजंस है, हमें पहुंचना तो हमारा गोल है ना, हमारा जो पर्पज है वहां पहुंचना है भाई। और किसी ने हमको फोर्स तो किया नहीं है कि तुम बैठो, क्लास जाओ, पेपर दो। इतने मैच्योर तो हैं हम, स्कूल कॉलेज से बाहर निकल के आ गए। और मुझे लगता है कि अगर जब हमारे पर्पज क्लियर हैं और हम ऑनेस्ट हैं खुद से, तो नो वन कैन स्टॉप। अब ये बात ठीक है, अभी मैं लग रहा है कि मेरी फर्स्ट रैंक आ गई तो इट वाज ऑल लक, बट ये लक के पीछे भी मुझे लगता है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो कहाँ से कुछ होगा। और मैंने अपनी कमियों पे काम किया है ना, तभी तो मैं यहाँ पे हुआ है कुछ ना कुछ। मेरे 1-2 पेपर में कम भी रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस बार भी नहीं होता तो मैं सर को बोलता, सर को मैं मार्कशीट भेजता बाकायदा, जो हर साल भेजता हूँ, और सर मेरे ऐसा रहा वैसा रहा। तो सर कहते हैं कि सर फिर अपनी तरफ से बताते हैं कि ऐसे इसको कर ऐसे कर। कई बार हम लोग क्या पजल्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, हमें भी समझ में नहीं आ रहा था, हमारे पास पर्पज़ भी है, हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है, हम गोल ड्रिवन भी हैं, हम गिव अप भी नहीं कर रहे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो तब आती है मेंटोर की ज़रूरत। तो सर बैठे हैं उसके लिए। तो कोचिंग तो मैंने ली थी 2018 में, और फीस भी कुछ नहीं थी। और अब तक वो फीस का मतलब पता नहीं उतनी सी फीस में मैं कितनी बार तो कितने हज़ारों का वो ले चुका हूँ फ़ायदा, कितने लाखों का। तो वो तो सोचना ही नहीं है। ये रूल अगर है दिमाग में और पर्पज आपका क्लियर है, फिर कोई फेलियर तो कितनी बार, मतलब जो इंसान ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं वो फेल होके ही पहुंचेंगे। और अगर तुम लगातार सक्सेस ही हो रहे हो लाइफ में, तो आई थिंक यू हैव नॉट डन इनफ इन योर लाइफ। तो बाकी तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं इस बात पे तो। थैंक यू सर। तो सबसे पहले प्रीलिम्स में आई वुड से स्टैंडर्ड बुक्स ही है जो आपको कट ऑफ क्लियर करवाएगी। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। स्टैंडर्ड बुक्स में मेन जो है दैट इज़ एनसीईआरटी, और उसके बाद में अगर आपको लक्ष्मीकांत करना है तो अदरवाइज अगर जो आपके क्लास नोट्स है दैट विल ऑल्सो बी सफिशिएंट। मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसमें, कि आंसर कैसे निकालना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर दैट यू प्रैक्टिस PYQs as many as possible and also other tests whichever are available, and don't be disheartened by the result whatever comes. ये सोचो हर क्वेश्चन में कि अगर मुझे ये नहीं आया तो इससे मुझे कुछ सीखने को मिला, एक एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे मिली। ये मत सोचो कि यार ये मुझे नहीं आता था। सो थिंक डिफरेंटली, राइट। तो पॉलिटी में वो मेंस में एज फार एज मेंस इज कंसर्न, तो उसके लिए आपको थोड़ा अनरिच्ड उसमें आपको कंटेंट चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी बाहर मटेरियल मिल रहा है कोचिंग का, यू कैन यूज दैट। और यू कैन डायरेक्टली नाउ तो चैट जीपीटी है, तो आप जो भी सिलेबस का टॉपिक है उसको उठाओ, उसमें जो भी PYQs आए हैं जस्ट रीड दोज PYQs, ट्राई आंसरिंग देम ऑन योर ओन, जो भी आपके पास कंटेंट है। उसके बाद में चैट जीपीटी को अच्छे से प्रॉम्प्ट दो कि प्लीज प्रोवाइड मी एन आंसर विच हैज़ बीन वैल्यू एडेड, जिसमें एग्जाम्पल्स है, जिसमें केस लॉस है, जिसमें आर्टिकल्स है। वो आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर देगा। एंड जस्ट राइट दोज आर्टिकल्स इन दोज क्वेश्चंस जो भी आपके मार्जिन में होगा। एंड वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग बैक, जब भी रिवाइज करो फिर आप उसी कंटेंट से वापस रिवाइज करो, तो वही आपका वैल्यू एनरिचमेंट हो जाएगा और वो आप खुद करोगे। यू विल नॉट बी रिलाइंग ऑन एनीवन एल्स, राइट। सो दिस इज अबाउट पॉलिटी। ज्योग्राफी जहाँ तक है, ज्योग्राफी आई थिंक एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स। उसके बाद में अगर आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए देन जीसी लियोंग विल ऑल्सो बी वर्क। बट अगर कोई फाउंडेशन कोर्स कर रहा है तो आई थिंक जो भी आपके टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं नोट्स, दे आर मोर देन सफिशिएंट, एंड along with it NCERT. So again main emphasis should be on NCERT. और मेंस के लिए इट इज आंसर राइटिंग, तो वो आंसर राइटिंग PYQs के साथ प्रैक्टिस करके, और वैल्यू एनरिच आप खुद ही कर लोगे अपने आप, थ्रू एग्जाम्पल, थ्रू मॉडल सोल्यूशन। जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उसमें उनके मॉडल सोल्यूशंस आएंगे, राइट। तो और क्योंकि जैसे ये भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों के कि हमारी कॉपीज अच्छे से चेक नहीं हो रही, तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा दैट यू आर द बेस्ट जो असेस कर सकता है अपने आंसर को। आप मॉडल आंसर देखो और आप खुद ही असेस कर लोगे, यू डोंट नीड एनीवन एल्स, क्योंकि जो चेक भी कर रहा होगा दे विल ऑल्सो बी लाइक जिसका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट होगा, सो दे आर नॉट वेरी एक्सपीरियंस देन यू,
राइट तो आप खुद मॉडल सोल्यूशन से, और वो भी मॉडल सोल्यूशंस देख के ही चेक करते हैं, तो आप उससे चेक करो और उधर ही साथ में अपने नोट्स में एडिशंस करते जाओ। और जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक से जो सब टॉपर्स सजेस्ट करते हैं, आई थिंक वही सफिशिएंट है, राइट। और मोहित आपको ज़्यादा बेटर बता सकते हैं इसमें। और एंड सर देयर वाज एन अदर क्वेश्चन आल्सो जो कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग था। हाँ 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 सो तो इंटरव्यू का मैं बताता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। सो मेरा एकदम डाइवर्जिंग एक्सपीरियंस रहा है। आरबीआई डीईपीआर में आई थिंक आई गॉट द लीस्ट मार्क्स जितने लोग थे, राइट। इट वाज 1/3 मार्क्स जो टोटल मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के, बहुत ही कम थे। और आई थॉट कि यार मेरा इतना अच्छा कॉलेज बैकग्राउंड है, ठीक है, मेरी मार्क्स भी अच्छे आए कॉलेज में, लाइक आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स इन द स्टीफेंस कॉलेज। उसके बाद मैं दिल्ली स्कूल से मैंने किया। सो आई थॉट कि मेरा सीवी तो अच्छा है, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम। आई ऑल्सो हेल्ड लीडरशिप पोजीशंस एज वेल, कि मैं अपने हॉस्टल के मेस का भी इंचार्ज था, उसके बाद में सोसाइटीज़ में भी था कॉलेज के। बट व्हेन द मोमेंट आई वाज सिटिंग इन द इंटरव्यू, तो जो इंटरव्यूअर था, जो मेन चेयरमैन थे बोर्ड के, उन्होंने सीवी ही जस्ट थ्रू इन फ्रंट ऑफ मी कि जो बायोडेटा था, दैट देयर इज नथिंग फ्रॉम वेयर वी कैन आस्क यू क्वेश्चन, क्योंकि आई डिडंट हैव रिसर्च एक्सपीरियंस, आई डिडंट हैव वर्क एक्सपीरियंस, बिकॉज आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्ट्रेट आफ्टर माई मास्टर्स। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग मास्टर्स ऑल्सो मैंने कोई इंटर्नशिप या कोई ऐसा पेपर नहीं लिया जहाँ पे रिसर्च करनी होती थी, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि मेरे को सिविल सर्विसेज में एंटर करना है। नो दैट वाज अ बिग जोल टू मी, क्योंकि एक तरीके से वो धक्का लगा कि अभी ही ये इन्होंने बोल दिया कि हाँ तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। सो व्हाट इफ आई फेल इन दिस एग्जामिनेशन एंड आई एंटर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड और आई एंटर इन रिसर्च वर्ल्ड, तो फिर तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्टी होगी। तो मेरे को लगने लगा कि या तो मुझ में कमी है कि, और इंटरव्यू में भी जब स्कोर आया देन आई रियलाइज कि बहुत ही कम स्कोर है। आई फेल्ट कि कहीं ना कहीं मेरे ही अंदर कमी है। सो व्हेन आई वाज अपेयरिंग फॉर दिस इंटरव्यू ऑल्सो आई वाज वेरी फ्राइटेंड, वेरी अफ्रेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि शायद तक इस बार भी वापस वही रिपीट होगा। एंड बिलीव मी, जब आप इंटरव्यू पहुंचते हो और फिर आप एग्जाम क्लियर नहीं करते हो, तो देन दैट इज़ अ वेरी व्हाट टू से वेरी सैड फीलिंग, और बहुत ही डिफिकल्ट एक मोमेंट होता है जो कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो कि यार ये कैसे हुआ, इंटरव्यू में आके कैसे इतना कम मार्क्स मिल गया। चलो ठीक है, अगर एक एवरेज मार्क्स भी मिल जाते तो ठीक है, आई गॉट 1/3, राइट। तो बट उसके बाद में फिर वही है कि मैंने सबसे पूछा कि क्या कर सकते हो, और टॉपर्स की ट्रांसक्रिप्ट देखी। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू इज नॉट अबाउट how many questions you answer, it is about how the way you answer questions. And अगर आपको नहीं आता question, you just say politely कि no sir, no sir, no ma'am, I don't know this, but I will work on this. So main क्या चीज़ है, they are judging how you are actually responding to the situation when you don't know anything, and are you bluffing or not. Bluffing is never appreciated in an interview. You need to be honest there and they will understand कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। उनको सब पता है, दे आर वे एक्सपीरियंस देन यू, राइट। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन का हो रही है इन क्लासरूम, आप सर से क्वेश्चंस पूछो। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद सर, व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग इन योर पीयर ग्रुप। कोई भी न्यूज़, कोई भी हैपनिंग हो रही है न्यूज़ में, कोई भी इवेंट हो रहा है, जस्ट डिस्कस अमंग्स योर सेल्फ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज उससे आपके जो मेन अंडरस्टैंडिंग है दैट विल बिकम ब्रॉडन, और दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू में इज अबाउट कि जितनी आपको क्लैरिटी होगी थॉट प्रोसेस में, उतना ही आप बेटर आर्टिकुलेट कर पाओगे। लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप कितने फ्लावरी या फैंसी वर्ड्स यूज कर रहे हो। इट इज अबाउट आर यू एबल टू कम्युनिकेट योर थॉट टू द इंटरव्यूअर और नॉट। सो आई थिंक वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस इंटरव्यू। सो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स बताओ। सो 8 स्टेट होते हैं, राइट। मुझे उस टाइम पे फर्स्ट इंस्टेंस में 6 ही याद है, बिकॉज इंटरव्यू का प्रेशर होता है। फिर उन्होंने वापस बोला कि वापस ट्राई करो, तो मैंने ट्राई किया, फिर मेरे को 7 पहुंचा। मैं मिजोरम मिस कर रहा था। तो फिर जो एक इंटरव्यू पैनल मेंबर थे, उन्होंने बोला कि अभी भी ये 7 ही, ये 6 ही बोल रहे हैं। मैंने बोला नो मैम, आई रीच टिल 7। फिर जो चेयरमैन मैम थी, शी लाफ्ड एट दैट एंड शी सेड कि हाँ ही सेड 7। तो इट इज सो कहने का मतलब ये टू सम अप कि जरूरी नहीं कि आप सब क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से आंसर करो। इंपॉर्टेंट ये कि आप किस तरीके से आंसर कर रहे हो, आर यू एबल टू इंटरैक्ट वेल विद द इंटरव्यूअर और नॉट। वो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन से आपको जज कर लेंगे
क्योंकि दे आर जजिंग योर पर्सनैलिटी एंड नॉट योर नॉलेज. नॉलेज हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन योर एग्जामिनेशन. सो दैट इज माई टेक ऑन इंटरव्यू. I think I am not well qualified to comment about the interview. क्योंकि मार्क्स मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट किए हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, एंड दिस इज़ द पार्ट विच इज़ ऑल्सो नॉट इन योर कंट्रोल. बस मैं इतना ही कहूँगा, इंटरव्यू के लिए कितने बच्चे हैं एक बार पूछूंगा मैं कि यहाँ पे सर से किसी ने ऐसा भी है कोई जिसने डाउट नहीं पूछा हो अभी तक? बहुत होंगे. तो डाउट पूछो, वो ऑटोमेटिक इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो गई, जैसे संभव जी ने कहा था अभी. इन डाउट पूछते रहो बस, वो ऑटोमेटिक आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा देंगे. वो हिम्मत लेके आओ पूछने की कि हंसने दो साइड वालों को. सेकेंडली, इंटरव्यू आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, एंड ओवर द ईयर्स मैंने भी यही फील किया है कि दिस इज़ द स्टेज विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल. तो आपको 500 नंबर उसमें लेके आने हैं रिटन में. अगर रिटन में, जैसे भी सर कहते हैं, 500 नंबर अगर रिटन में आ गए तो यू विल क्वालिफाई. फिर इंटरव्यू में 100 भी देते. इस बार का बेंचमार्क मत लेना, इस बार का जो कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा है, मे बी दे हैव स्केल्ड अप, ठीक है. बट अगर 500 नंबर का अगर टारगेट है आपका, 500 नंबर अगर उसमें आ जाते हैं तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको इंटरव्यू में, चाहे कितने भी दे दें. वो मिनिमम नंबर होते हैं, वो देंगे ही देंगे आपको. तो मैं इतना ही कहूँगा इंटरव्यू के बारे में. आई बिलीव कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट. संभव ने बहुत अच्छे से बताया है और होपफुली आप ये बात फॉलो करेंगे. और सर बात करते हैं क्लास में, सर समझाते हैं चीज़ें, अगर उसको फॉलो करोगे तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी इस पढ़ाई के साथ साथ होती चली जाएगी. क्योंकि ये ही नॉट ओनली टीचेस द सब्जेक्ट, ही ट्रांसफॉर्म्स अस. तो अगर वो चीज़ समझी तो इंटरव्यू तो वो इट्स अ केक वॉक देन. ठीक है. I was asking from Lokesh sir, so he cleared examination in 2024 and he was mentor here. तो मैंने उनसे जाके पूछा कि सर इंटरव्यू के लिए क्या करना है. सो ही टोल्ड मी कि आप जैसे विभास सर के साथ अभी हो, सो जस्ट ऑब्जर्व हिम, द वे ही बिहेव्स, द वे ही रिस्पॉन्ड्स टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, द वे ही लिसन्स टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. चाहे कितने ही बहुत ही बेसिक से भी डाउट है, बट जस्ट लुक एट हिम कि वो कितने ईगरनेस से आपको सुन रहे हैं. आई थिंक दैट ऑल्सो गेट्स मार्क्स इन इंटरव्यू, कि आप कितने ईगरली उनको लिसन कर रहे हो और आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो. तो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट पर्सन जो आपको सिखा सकते हैं. अभी सीखो. इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि आप वो 10 दिन में आप कुछ मिराकल कर दोगे और आप बहुत अच्छा हो जाओगे. दिस इज द ऑर्गेनिक प्रोसेस जो कि पूरा लाइव अभी गोइंग प्रोसेस है. तो आप अभी सीखो, इनसे डाउट्स पूछो. मेरे को पता है मैंने हर क्लास में मैं डाउट पूछता था. सर ऑल्सो रिमेंबर्स दिस, एंड इवन आफ्टर क्लास ऑल्सो आई यूज टू गो. और मैं ये भी करता था कि मैं सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछता था, कि ताकि और लोगों के भी क्वेश्चन देख लूँ मैं कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं और मेरी और अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो जाए. सो यू ऑल्सो डू ऑल वो करिए, रादर देन कि हाँ हम बाहर जा रहे हैं और जैसे मोहित ने बोला कि हम 2 घंटे फालतू में टाइम खराब कर रहे हैं. उससे बेटर ये कि हम जो हमारे साथ है रिसोर्स उनका प्रॉपर यूटिलाइज करें. हम तो वैसे भी इकोनॉमिस्ट है, हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन चाहिए, राइट, परेटो ऑप्टिमैलिटी. तो आई थिंक वही चीज़ है. In my case, I had co-curricular activities. तो बट मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू में ऐसा co-curricular activity ज़्यादा मैटर करता, बिकॉज देयर हैव बीन सम कैंडिडेट्स जिनका डैफ में बिल्कुल co-curricular activities नहीं थी, बट स्टिल दे एंडेड अप स्कोरिंग वेरी गुड. तो इट इज़ अबाउट कि आप कैसे उस दिन खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, हाउ काम यू आर, what is your personality. It is as simple as that. It is not about what you have done in past, because they also know कि कई बार आपके कॉन्स्टेंट होते हैं, कई बार कुछ चैलेंजेस होते हैं. मे बी आपके कॉलेज में ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, मे बी आपने स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज किया. सो वो मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है कि आपने क्या सीखा, और उस आधे घंटे के एक्सपीरियंस में आर यू एबल कि अगर आपने 1-2 क्वेश्चन भी उनके सेटिस्फेक्शन लेवल पे आंसर कर दिया, देन आई थिंक दे इग्नोर अदर क्वेश्चंस. उनको अगर 1-2 क्वेश्चन में ही समझ आ गया कि हाँ इस इंसान को लेना है, देन दे विल गिव यू गुड मार्क्स. एंड आई स्कोर्ड 65% दिस टाइम, विच इज decent, मतलब not that great but not that bad also. So I think that work कि 2-3 क्वेश्चन में मैंने अच्छे से आंसर किया. एंड मैंने खुद को यही बोला था कि मेरे को डरना नहीं है कि मेरे को बेस्ट आंसर नहीं आता है, बस मुझे इनसे बातचीत करनी है, मेरे को इनसे कन्वर्स करना है, कि ताकि जस्ट लाइक एन इंटरैक्शन, कि जैसे अभी हमारा इंटरैक्शन हो रहा है. सो दैट इज द इंटरैक्शन वेयर आई एम लर्निंग समथिंग फ्रॉम देम, दे आर ऑल्सो लर्निंग समथिंग फ्रॉम देम. आई थिंक दैट शुड बी द अप्रोच.
एंड देन फिर वही जैसा इंटरव्यू में इन्होंने बोला, इट इज़ वेरी अनसर्टेन, इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, सो मेन फोकस शुड बी ऑन योर मेंस एंड रिटन पोर्शन, आप वहीं पे मार्क्स कर सकते हो बस। हाँ, तो उसमें मैं बोलूँगा कि जैसे देखो, दे विल बी डेज जब आपका लो डे होगा, यू विल नॉट बी दैट प्रोडक्टिव, राइट, बट उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि अगर हम 1 घंटा भी पढ़ पा रहे हैं ना, नाउ दैट इज एडिंग समथिंग टू यू। तो अगर आपका पूरा दिन चाहे खराब हो गया हो, रात में आपके पास 2 घंटे भी है, जस्ट डू समथिंग इन दैट। ये नहीं कि आप क्या करो, आप उस इनर्शिया में चल जाओ वेर यू आर नॉट स्टडिंग फॉर अ डे, फॉर अ 2, और आप वो पूरा हफ्ते कंटिन्यू हो गया, नाउ दैट इज डेंजरस। आपका दिन आएगा जब आपका आधा दिन कुछ मन नहीं करेगा, आप जस्ट बुक लेके बैठे हुए और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो होता है, दैट इज कॉमन विद एवरीवन। देयर इज नो वन जो कि ये बोलेगा कि अगर हम 7 दिन पढ़ रहे हैं और हम 7 दिन जब पढ़ रहे हैं, वी आर इक्वली प्रोडक्टिव इन एवरी आवर, सो दैट इज वेरी नॉर्मल। बट हमें वही समझना है, और हमें ये समझना है कि जब हमारा अच्छा दिन हो ना, देन मेक इट द बेस्ट। मुझे इस पे वीरेंद्र सहवाग सर की एक लाइन याद आती है, वो बोलते थे कि जब मेरी अच्छी फॉर्म होती थी ना, तो मैं इतने रन स्कोर कर देता था कि बाद में अगर मैं आउट ऑफ फॉर्म भी चल जाऊं, 0 भी स्कोर कर दूं, तो कोई मुझे ड्रॉप नहीं कर पाए। सो यू ऑल्सो नो कि कोई ऐसा दिन होगा जब आप बहुत प्रोडक्टिव हो गए, तो जस्ट मेक इट मोर, कि अगर आप नॉर्मली 6 आवर्स पढ़ते हो, तो देन मेक इट 8 आवर्स, 9 आवर, और फिर अगर कभी किसी दिन आपका नहीं मन हो रहा, देन यू कैन डू 4 आवर, 5 आवर, बट यू हैव कंपनसेटेड फॉर दैट। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन 13 से 14 घंटे पढ़ रहे हो और एक दिन आप पढ़ रहे हो सिर्फ 1-2 घंटे, बिकॉज देन यू विल ब्रेक योर सेल्फ। वो नहीं होता कंटिन्यू, आपको 7 से 8 घंटे देने हैं। किसी दिन 1-2 घंटे ज़्यादा हो जाए बहुत बढ़िया, किसी दिन कम हो तो उसमें गिल्ट में नहीं जाना कि मैं गिल्ट में चला गया कि यार मुझसे नहीं हुई पढ़ाई, कोई बात नहीं। ये ऐसे सोचना कि सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है तो ये और सबके साथ भी हो रहा है, बस मुझे इस प्रोसेस को एंजॉय करना है और रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। जैसे आप रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ दोगे ना, देन आई थिंक ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। आपको ऐड करना है कुछ? ये आपका सो आर यू प्रिपेयरिंग फॉर IAS ओनली, सिविल सर्विसेज ना? तो GS तो बहुत मेजर पोर्शन है हमारा, और बिगेस्ट चैलेंज ये है कि चीज़ों को समझ तो लेते हैं पर वो याद नहीं रहती, और जितना आगे बढ़ते जाएंगे पीछे वाला गायब होता जाएगा। तो उसका सिंपल सा तरीका यही है कि प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से क्या होगा? प्रैक्टिस ऐसे PYQ उठा लिए, 4-5 PYQ उठा लिए रेंडमली। अब आपको लग रहा है कि आई एम कंफर्टेबल विद इट दिस सब्जेक्ट, तो PYQ देखने से पहले आप सब्जेक्ट को रिवाइज करो। इफ़ यू कैन डू इट तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, पर रिवीजन इज़ मस्ट। और ये बात आप पूछ रहे हो कि एक ही बार में पूरा रिवाइज करें, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवाइज करें, तो रिवीजन तो अभी से ही होना जाना जरूरी है, क्योंकि जब आप एंड में करोगे तो सब कुछ इतना ज़्यादा बल्कि दिखेगा। वो बल्क को कम करने के लिए अभी से ही रिवाइज करते चलो। जैसे आपकी GS की क्लासेस हो रही होंगी, जैसे भी आप पढ़ रहे होगे, तो उनको आप करते चलिए रिवाइज, तो धीरे धीरे वो जो कंटेंट है ना वो बहुत कम होता जाएगा। जैसे मैंने बताया भी था कि आपको किसी चीज़ को पढ़ने में 15-20 दिन लग रहे हैं, वो धीरे धीरे 15 मिनट हो जाती है। इतने आप पन्ने पलटते हो, आपको पेज याद हो जाते हैं, आपको ये पता होता है कि ये टॉपिक कौन सी जगह पे मैंने कैसे लिखा था। जब तक वो स्टेज ना आए तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। रिवीजन तो जितना एम्फेसाइज करें ना उस पर उतना कम है। रिवीजन ही इज़ द की, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, बाकी कुछ है नहीं इस एग्ज़ाम में। ज़्यादा कम पढ़िए। टॉपिक्स हैं जैसे कि एक कोर, सर ने भी हमेशा कहा था कि एक कोर होता है, एक पेरीफेरी होती है। तो कुछ कोर टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, उन कोर पे आपकी पकड़ बनाओ और उनको बार बार रिवाइज करो। पेरीफेरी में थोड़ा बहुत कम भी आएगा, वो चल जाएगा। बस कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं हिस्ट्री में, फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री में हम बार बार एम्फेसाइज जितना करें कम, गुप्ता पीरियड, विजयनगर एम्पायर को उतना कम है। तो कुछ ये कोर टॉपिक्स हैं, पर पेरीफेरी में अभी जैसे इस बार चालुक्य वाला क्वेश्चन आ गया था, पेरीफेरियल क्वेश्चन है, बट आपको जब कोर पता होगा तो कुछ ना कुछ आप लिख दोगे। तो इससे क्या होगा? आपका सिलेबस कम हो गया, रिवीजन में भी आसानी रहेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा धीरे धीरे। रिवाइज जैसे जैसे सर पढ़ाते जा रहे हैं, चाहे अपने सर हैं विवास सर या फिर GS में, जितना रिवाइज करोगे उतना ही जल्दी एग्जाम निकलेगा। तो जितना लेट करोगे उतना लेट हो जाओगे। तो है ना, इसमें इतना ही है। स्पेसिफिक इसमें जैसे रिवीजन की देर इज अ वीडियो ऑन YouTube बाय मयूर हजारिका सर, उनका काफ़ी साइंटिफिक मेथड है रिवीजन का।
कि कैसे 3 दिन के साइकिल में करना है, फिर आफ्टर अ वीक, उसके बाद मंथ में साइकिल, तो उन्होंने प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. देन यू कैन ऑल्सो व्यू दैट, वॉच दैट वीडियो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. सो it was our pleasure. मैम एक बात है कि हमारी एजुकेशन, इंडियन सिस्टम जो है ना एजुकेशन का, वो ये है कि दे क्रिएट अस एज अ, हम लोग पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो जॉब पाने के लिए कर रहे होते हैं. सारी एजुकेशन हमारी इस चीज़ पे टिकी होती है कि पढ़ लोगे तो जॉब मिल जाएगी. कोई नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ता ही नहीं है. और अगर आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ोगी तो ये सारी चीज़ें दिखेंगी ही नहीं कि पर्क्स क्या हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं. अगर आपके पास नॉलेज है ना, मैंने जॉब में भी ये चीज़ देखी है, एंट्री होना ठीक है, मतलब अभी तो हमारा प्रोसेस शुरू हुआ है, असली मेहनत तो अब है. एंट्री ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया, आप स्टेट गवर्नमेंट में हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे IAS IPS हो, कुछ भी हो, बट व्हाट मैटर्स इन द एंड आपकी नॉलेज. जितना आपके पास ज्ञान होगा तो आप को ही प्रेफर करा जाएगा हर जगह पे. उनको पता है कि ये बंदा काम कर सकता है. ये तो फोकस करिए ज्ञान लेने पे, निष्काम कर्म करने पे, मेहनत करने पे, एंड एवरीथिंग फॉलोज. बाकी सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं. उस पे पर्क्स वगैरह ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं आई बिलीव. आपको जब ये लगेगा ना कि आई वांट टू बी एन एनलाइटेंड पर्सन, मुझे इंटेलेक्चुअली एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना है, तो बाकी सारी चीज़ें तो इट विल फॉलो. तो वो उस चीज़ पे ध्यान मत दो ज़्यादा. So on that note, I will say a thank you to all of you and thanks to both of our friends today here. And I hope, and tomorrow we are meeting for a session. नहीं छुट्टी तो भी लीव पीछे कितनी सारी, कहाँ कितनी ले. So tomorrow I will be meeting you for a session and I will continue macro with you in the classroom. So I'll see you at 3 tomorrow and thanks again to all of you. Thanks a lot. God bless you all. Thank you.